रघुनाथ पदे होइबे आकुति कबे हम भुज बोसे युगल प्रीति रूप रघुनाथ पदे प्रभु मोर आशा प्रार्थना करो ये सदा नरोत्तम दास रूप रघुनाथ पदे प्रभु मोर आशा प्रार्थना करो ये सदा नरोत्तम गौरंग बोलिते हमें पुलक शरीरा कबे हम होते नयन भवे नीरा गौरंग बोलिते हमें पुलक शरीरा हरि हरि बोलिते नयन भवे नीरा विषय छाड़िया कबे शुद्ध हवे माना कबे हम हेरबो श्री वृंदावन विषय छाड़िया कबे शुद्ध हवे माना कबे हम हेरबो श्री वृंदावन विषय छाड़िया कबे शुद्ध हवे माना कबे हम हेरबो श्री वृंदावन विषय छाड़िया कबे शुद्ध हवे माना कबे हम हेरबो श्री गौरंग बोलिते हवे पुलक शरीरा हरि हरि बोलिते नयन भवे नीरा गौरंग बोलिते हवे पुलक शरीरा हरि हरि बोलिते नयन भवे नीरा। Hare Krishna. So, welcome everybody to this. I think this is the first session of the first special session of the Nityananda Sabha Working Devotees. Okay, so very happy to be here amidst all of you. Let's begin with prayers and then we'll get into this session. Om Ajnana Timirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kada Mahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Uta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagar Jatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitamscha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swami Nitinamine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschat Deshatarine Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namane Gauratvishe Namaha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Hare Krishna. So I was told that there are some devotees online also. So welcome all online devotees as well. Everybody is able to see me? I'm able to see everyone? Yeah. Okay. So as we discussed, the topic of this morning session is purpose of Grihastha Ashram. And I was just contemplating that what is the Vaishnava song which would capture one of the purposes nicely, right? In fact, for that matter, this is the purpose of life. And whatever is the purpose of life is the purpose of Grihastha Ashram. If the purpose is different, then why are we here, right? Why do we want to enter Grihastha Ashram? How can the purpose be different, right? Very logical. Gauranga bolite have pulaka sharira, Hari Hari bolite naine pavinira. When will that day have come? When I say Gauranga or Hari Hari, Gauranga, Hari Hari. So tears will come in my eyes, my hairs will stand out of so much love, so much sentiments. Ar kabe nitai chandel karuna hoibe, samsara vasana mora kabe tuchya hoibe. When will Lord Nityananda be merciful on me, so that what will happen? Sansara vasana mora, my desire to enjoy this world, my attachments, my conditionings, they will become insignificant. When will that day come? Vishaya chhadiya kabe shuddha habe mana. When will I be able to give up sense gratification, the desire for sense gratification? Kabe hama here bo Shri Vrindavan. Because only then I'll be able to actually enter into Shri Vrindavan Dham. Rupa Raghunath pade hoibe akuti, kabe hama bhujabo se yugala priti. When will I get shelter of Rupa Raghunath's lotus feet? Only by their mercy will I be able to understand the yugala priti, the loving affairs of Radha and Krishna. Rupa Raghunath pade rahu mora asha. I have hope at their lotus feet. Prarthana karo ve sadanarottam das. That's my prayer at the lotus feet of Rupa and Raghunath. Okay, so with this short introduction, let us get into purpose of Grihastha Ashram. So I just want to quickly understand the background of the entire audience here. So all of you are chanting 16 rounds? Since how many years typically? Somebody two, 3, 4, like that? 5, maybe? Okay. 6 months. Oh, okay. Your name, Prabhu? Aman. Aman is chanting 16 rounds. 16 rounds? 32 rounds. From 6 months. Very nice. Let us chant Hari Bol for Aman Prabhu. Hari Bol. Okay. Everybody will see this. It's just a little high. You'll have to kind of strain your neck, but I think it should be fine. Okay. Purpose of Grihastha Ashram. Ready? Hari Bol. Okay. So all of you are working devotees, correct? Others are not working anywhere? They are studying. Studying devotees versus working devotees. Okay. So students versus those who have graduated. Right? So all of you must be. So how many of you are in software? Okay. How many of you are in hardware? Okay. Other wares, whatever. Different backgrounds. So that means everybody has different backgrounds. Everybody is from engineering background, or you have, like we have other than engineering also here? Okay. So at least that is one common thing. That everybody is an engineer. Yes, engineer. Okay. And everybody is working. So we have two things common. And another common thing is anybody is married already? Okay. Our Deepak Kabra Prabhu and Amrish Pan Prabhu, they are married. And I am also married. So others are looking forward to their marriage. How many of you are looking forward to get married? I mean, you are here. Now that you have decided, you have to look forward to get married. Sooner or later, whenever. Sooner or later. I mean, it should not happen that udhar nahi hai, to idhar bhi nahi hai, abhi idhar bhi kya karne walon hai. No, full enthusiasm. What is the problem? We are enlightened properly. So that's what we will be discussing today. Purpose of Grihastha Ashram. As I said, we can't discuss purpose of Grihastha Ashram unless we first revise purpose of life. Because we may forget every now and then. We are conditioned soul after all. We all should not be under a misconception that we are pure devotees. So we are struggling devotees. We are sadhakas.
We are conditioned souls. We are trying to become devotees. So we have to remind ourselves. That's why we have so much reading, hearing. So that we can remind ourselves of the goal of life, purpose of life. And what is that? Can we all very quickly, can we just quickly raise our hands and say? There are many answers. Quickly. Go back home, back to our head. Purifying the heart, glorifying Krishna. Okay. Remembers from the previous session. To develop Krishna Prem. Yes. To do devotional service, because that's the means as well as the goal. Okay. Or kuch? Summarize ho gaya. Seva of Guru. Serve Hari Guru Vaishnavas. Okay. Why hai? To become Krishna conscious. To get cured of our disease. हम सब रोगी हैं, patient हैं. What is our disease? Enjoying mentality, bhog vritti. और cure क्या है? Normal state है, seva vritti. To remember Krishna at the time of death. That's also a goal in one sense. To realize that there is only suffering in Maya service and only bliss in Krishna's service. That's a very important realization we need to get. That there is only suffering in Maya service and there is bliss in Krishna's service. Very important. And that is one of the important purpose of Grihastha Ashram. We'll see that. Purification of heart and glorification of Krishna. And Vyasacharya Pr was in one lecture telling that just like, sometimes we write a program, we write a code, and then we have to debug. There are some bugs, we have to debug. One by one, we remove the bugs, Similarly, in our life, one by one, we have to remove this lust, greed, envy, anger, pride, delusion, these bugs or these viruses by running the antivirus software. Okay, so now that we have revised the purpose of life, let us never ever forget that that is the purpose of Grihastha Ashram. So if tomorrow somebody asks you, Prabhu, what is the purpose of Grihastha Ashram? Why are you joining Grihastha Ashram? Are for this, Prabhu? आपने क्या सोचा था? Right? हाँ बोलो. अगर कोई औरंग सभा वाला मिलता है, भाई हमारा तो ये purpose, आपका क्या? हमारी वही हाथ मिलाओ. Same to you, shake hand. So this should be very clear. ये गड़बड़ है तो मतलब गाड़ी दूसरे रास्ते पे चली जाएगी. Then we are not talking about Grihastha Ashram. Then we are talking about Gram AD and deep dark well and everything else, forest of material enjoyment and everything. Right? So this is very important, and this we have to remind ourselves again and again by reading, by hearing, by associating, by coming to temple. Same thing. And do brahmacharis need to remind themselves of this again and again? Yes. They also need. नहीं तो वो भी गाड़ी दूसरी जगह चली जाएगी. So every bachelor is not a brahmachari, and every householder is not a grihastha. Right? जो difference एक householder और एक grihastha में है, so वही difference एक bachelor और एक brahmachari में है. Just because somebody is a bachelor does not mean he is a brahmachari. It has to have some goals, some purpose. So therefore, it is called ashram. It's just ashram. So sometimes people say, Prabhuji, I want to join. No, Prabhuji, I want to marry. But marriage is also joining. So we are also wanting to join. What? Ashram. Important. Narratives are important. See, in companies and also typically they talk about narratives. What words you use frames your consciousness. जैसे कैसे एक समय में abortion को बोलते थे भ्रूण हत्या. क्या बोलते थे? कोई करेगा क्या? हत्या. धीरे धीरे गर्भपात. अभी क्या है? Some removal of some tissue, abortion. लगता है simple है, easy है, कोई भी करेगा. लेकिन वो भ्रूण हत्या बोल रहे हैं तो तुरंत एक heaviness आ रही है. ठीक उसी प्रकार whenever whatever. By the way, we are supposed to have class in English, right? But बीच में हिंदी चलता है. कानपुर है, चलना चाहिए. So the words which we use, the narratives which we use is very important. So we have to remind ourselves, अरे मैं किधर रह रहा हूँ? ओ ये तो आश्रम होना था, तो और ही दिख रहा है. नहीं इसको चलो आश्रम बनाते हैं वापस. So then we'll always be conscious. So as I always say, Krishna consciousness and what are the two most important things? Krishna and consciousness. So ये सब भूलना नहीं है. तो आश्रम है. Ashram is a place where we take shelter of Krishna, the lotus feet of Krishna. So Prabhupada writes here, and we will try to stick to Prabhupada's teachings. क्योंकि title में लिखा था from Prabhupada's teachings. देखा camp में आपने schedule में लिखा है from Prabhupada, because it's very important these days. Because there are so many schools of thought. कोई कहीं का teaching आ रहा है, कोई कहीं का teaching आ रहा है. We want to stick to Prabhupada's teachings, right? And let us see what Prabhupada says. So an ashram is a place where spiritual culture is always foremost. It does not matter whether the place belongs to a householder or a mendicant. Clear, black and white. दूध का दूध, पानी का पानी. Okay. Grihasthita ashram. That is Grihastha ashram. There is an ashram, but it is in our house, in a householder's place. Householder owns it. And therefore, ashra is most important here. And two things. We take shelter of Guru and Krishna to be sheltered from Maya or material desires. So shelter का दो meaning है यहाँ पे. Right? One is we take shelter of Guru and Krishna and devotees, Hari Guru Vaishnavas. And
to shelter ourselves against material desires, Maya, जैसे umbrella लेते हैं in rain, right? So that is Grihastha Ashrama. How this happens, ये सब हम लोग देखेंगे in this session and in the next session. क्योंकि ये खाली बोलने सुनने की बात नहीं, there is a science behind it, how it happens. So we are now currently in this session we are discussing the purpose of Grihastha Ashrama, the science and the art behind it. कृष्ण ने ये जो बनाया क्या सोच के बनाया Grihastha Ashrama? मिस्टेक है कि कुछ सच में सोच समझ के बनाया गया है. All that we will discuss. And in the next session we will discuss कि what is our responsibility now? How do we do that? So obviously it is ashram, so therefore it is centered around Krishna. So when we go to temple, there is pradakshina karte hain, right? Everybody's life in this world is revolving around something or the other. Whether it's a materialist, a devotee, non-devotee, husband, wife, whoever, कोई तो एक center है जिसके चारों घूम रहे हैं, कोलू का बैल types, right? So now as a devotee, whether we are in Grihastha Ashram or Brahmacharya Ashram, we have to center our life around Krishna. So coming together to enjoy versus coming together for higher purpose. That is which we have to always remember. That we are not entering Grihastha Ashram with enjoyment as the center. No, that's not the purpose. The purpose of Grihastha Ashram is not to enjoy. Though there is a license for some enjoyment, we will discuss what that means. But we are not entering with that purpose. अरे यहाँ enjoy नहीं कर सकते, वहाँ enjoy कर सकते, चलो वहाँ चलते हैं. नहीं, purpose क्या है? Purification. जो हमने पिछले slide में discuss किया था. Okay. So materialistic people are thus not finding marriages useful because they are entering with enjoyment in mind. अब एक आदमी के साथ कितना enjoy कर लोगे? तो 10 दिन बाद, एक महीने बाद बोर हो जाता है, तो बोलता है divorce दे दो. So that's what is the problem with that. And Prabhupada says when we marry, we should become like 1 + 1 = 11. And Amrish Pran Prabhu tomorrow in that session on marriage and family life, he'll discuss more about this aspect of marriage. That how we should marry, our marriage should increase our services. Our marriage should not reduce our service. अब 2 लोग हो गए ना, पहले आप अकेले कर रहे थे, अब 2 लोग मिलके कर रहे हैं, तो कुछ तो अच्छा होना चाहिए. So there is 1 + 1. Help each other advance in spiritual life. That is the spirit in entering marriage. So we take responsibility of some souls. Wife will be there, children will be there. So we help each other advance in spiritual life. Discharge duties and responsibilities nicely. Why? 3 reasons. To please Guru and Krishna, to set right example, and for our own purification. That's why we have so many duties and responsibilities in Grihastha Ashram. And we have to discharge them very carefully, very diligently. For 3 reasons, these 3. Brahmacharis make temple their home, Grihasthas make home their temple. तो कहीं आगे जाके we have to ask ourselves, मैंने सोचा था मेरा home temple बनेगा, बना क्या? We have to ask. Human life means we have to ask ourselves questions. We have to always check. I am practicing Krishna consciousness. Am I practicing? What am I doing for practicing Krishna consciousness? I am saying to the whole world I am a devotee. So how is my life different from others' lives? We have to ask ourselves. नहीं तो life is so difficult and there is so much struggle for material existence. रोटी कपड़ा मकान हमको भी करना पड़ेगा, बाहर वाले को भी करना पड़ रहा है. तो कब वो life वैसी बन जाएगी हमको पता नहीं चलेगा. Unless we are always conscious of it. Unless we are asking ourselves कि मैं जिस रास्ते पर निकला था उसी पर हूँ कि कहीं और चला गया, पीछे देखना पड़ेगा. Right? So it's very important in spiritual life to sometimes look back for 2 reasons. One, to see whether whatever path I wanted to take, am I on that path or not? And second, also to see कि कितना आगे आ गए हैं. Sometimes you need to know that okay कुछ हो रहा है, नहीं तो क्या है. We all need some motivation, right? जैसे सोचा प्रसादम के लाइन में लगे हो, जूता चप्पल के लाइन में लगे हो, बहुत लंबी लाइन. तो अब ठीक है, we don't want to, etiquettes है तो पीछे ही लगेंगे, बीच में नहीं. यहाँ पर वो ऐसे करके नहीं, we should follow etiquette, क्लास में लग के. थोड़ी देर बाद जब पीछे देखते हैं और लंबी लाइनें लगता है, तो आगे आ गए. करेक्ट? So that होता है कि नहीं सबके साथ, अभी कितना आगे बचा है और कितना पीछे बचा है. When we time to time see that, लग रहा है कि लाइन चल रही है आगे. We are not in the wrong line. So it's important to look back sometimes, not to regret, but to be happy. Okay, I'm on the to check and to be happy. Check whether I'm on the right path and happy that yes, I'm making progress. Humility does not mean to say that I have not made any progress only. That's not what is humility. कृष्णा बोले नालायक आदमी यार, इतना साल से प्रैक्टिस कर रहा है फिर भी कुछ नहीं सेवा कर रहा है, सोचता है कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ, तो मतलब प्रोसेस बेकार है क्या? प्रोग्रेस होता है, प्रोसेस इज राइट, एंड वी हैव टू एक्नॉलेज दैट. जस्ट दैट वी डोंट हैव टू बिकम प्राउड अबाउट दैट प्रोग्रेस. वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस प्रोग्रेस इज नॉट बिकॉज ऑफ मी, दिस इज बिकॉज ऑफ मर्सी. मेरे जैसा नालायक भी अगर थोड़ा प्रोग्रेस कर सकता है, इसका मतलब इट इज बिकॉज ऑफ मर्सी. So our faith in the process increases. Right? Humility does not mean to always remain nalayak only. And Guru and Krishna is asking for service. Just like when we were in day 1, no sir, we can't do because I have exam, I have this, I have that. Now also Guru and Krishna are asking, no sir, I have exam, I have this, I have that. Right? The eagerness to serve, the eagerness to take pain, the willingness to sacrifice, the willingness to keep Krishna above some other things, at least whenever some opportunity comes, not every time, because there are so many other things also.
So these things are symptoms of advancement. So we have to always ask ourselves whether that is happening or not. So so temple home. And as I said, Bachelor versus Brahmachari. And we have to always remember in Grihastha Ashram, because of these reasons, because it is centered around Krishna, therefore we have to always be conscious whose house is it? Whose wife is it? I mean, whose the family members, they belong to who? Krishna. So we are caretakers. We have to always remember. This is not something which we have to only remember in voice and then forget about it. Like we say now, I see, oh, why, yes. I know. Now these things are some nice, nice things which you pick up. But we have to stick to that. At least if not in the form, at least in the substance, in the principle of it. But at least we should remind ourselves of that, and that is the purpose of morning program. So that before we begin our day, we are reminding. Because Grihastha ke paas power aa jata hai, paisa kama raha hai, right? Money he is earning. Now he is himself doing some things. So that proprietorship mentality is very easy to come in. So therefore we have to work little harder. ये बीच में क्या हो रहा है? अच्छा, okay, there is some echo, I think, interference. So we have to, Grihastha has to remind himself time and again, so that he is, and अगर वो किया ना उसने, so he'll make tremendous spiritual advancement, tremendous, because we are kind of explicitly becoming conscious. Right? So I would say actually Grihastha Ashram is a very nice platform to become Krishna conscious. If we are always aware, and if we are doing reading, hearing, chanting, if we are in association of devotees, then actually we are able to make double, triple, fast progress. Otherwise, what will happen in a home? Everybody will think they are master. So a child is thinking, a wife is thinking, I am master. Husband is thinking, I am master. Why? Because I am earning, I am bringing money, I am creating this facility. So who is the master? Wife is thinking, ultimately, whatever I am saying, that is only what is happening. So I am the master. And child is saying, इन दोनों को जो सोचना है सोचना है. एक बार मैं रोना चालू किया ना, so both of them will do what I am saying. So I am the master. So right from an ant to Indra, everybody is thinking they are the master. So a devotee in Grihastha Ashram does not feel like that, because that's what is the meaning of centered around Krishna. Okay. Next, what is Vyasacharya Thakur saying? So we all know that verse. Savai pumsa paro dharmo yato bhakti radhokshaje apratihata ahai tuki apratihata yayatma suprasiddhati. In that purport, Prabhupada gives one interpretation of apratihata, and Vyasacharya Thakur gives another interpretation of apratihata. According to Prabhupada, apratihata is an adjective. So he is applying adjective. Prabhupada is applying this adjective to the process of bhakti. That how should our process of bhakti be? Vyasacharya Thakur is applying apratihata to bhakti itself. That bhakti is apratihata. Nobody can stop your bhakti. No material situation can hamper your bhakti. You understand? Slight difference. One is about the definition of bhakti, the nature of bhakti. The other is about our endeavor of bhakti, our practice of bhakti. So Vyasacharya Thakur is telling that no material condition can hamper bhakti, whether it be ashram, or it be varna, or it be anything. Ashram ultimately is a material condition, right? Brahmachari ashram, Grihastha ashram. So the point is that bhakti can continue in any ashram. So it doesn't get interrupted by anything material, including ashram. And therefore, Bhaktivinoda Thakur said, Grihe Thako, Vane Thako in Bengali means rehna, reside. Grihe Thako, Vane Thako, Sada Hari Bole, Dako. Dako means to call out. Sada Hari Bole. And therefore, we see, that is wonderfully sanctioned by Mahajans. In fact, out of 12 Mahajans, 7 are Grihasthas, right? So once, I don't know if I have shared this joke with you earlier, but once, Krishnanand Prabhu was giving a class, and Krishna Kishore Prabhu said, Prabhuji, out of 12 Mahajans, Krishna Kishore Prabhu is a Grihastha. Prabhuji, out of 12 Mahajans, 7 are Grihasthas, majority wins. Krishna Prabhu said, wait a second, don't forget 4 Kumaras are 4. Then Krishna Prabhu said, Prabhuji, for that matter, every Grihastha has a Mr. Grihastha, Mrs. Grihastha, Master Grihastha, then we... But anyway, that's on a lighter side. So Chaitanya Mahaprabhu associates, so many renunciates, so many householders. Wonderful. In fact, Chaitanya Mahaprabhu never asked householders to renounce. Emphasis is on what is favorable and what is unfavorable. And instructions to both Brahmacharis and Grihasthas were same. What were the 2 instructions? Chant and preach. That's it. Chaitanya Mahaprabhu's instruction clear. Chant and preach. Jan sarthak kari kar paropkar. And equal to both Brahmacharis and Grihasthas. According to Srila Prabhupada, the whole Varnashram system is so designed that each and every status of life is called an ashram. This means that spiritual culture is common factor for all. See, Prabhupada's purports sometimes are so clear, just that we have to know which purports are so wonderful purports. The Brahmacharis, Grihasthas, Vanprasthas and Sannyasis all belong to the same mission of life, namely realization of Supreme. Therefore, none of them are less important as far as spiritual culture is concerned.
The difference is as a matter of formality on the strength of renunciation. The sannyasis are held in high estimation on the strength of practical renunciation. You see, Prabhupada is making it so clear that the focus is the spiritual, as far as spiritual focus is concerned, there is no difference. And just to elaborate on this more, once Rajam was telling that what are the three purposes for which one takes to renounce order of life. The three purposes are to stay away from Maya, to absorb in Krishna, and to distribute Krishna Shiksha and Krishna Prema. We have to do the same in Grihastha Ashrama as well, just that spirit is the same, form is different. What is the three things about the spirit? Stay away from Maya. Do we want to stay away from Maya? Yes. To absorb in Krishna, that's the purpose of life. And to distribute Krishna Shiksha and Krishna Prema, we have to do that because preaching is the essence. So you see, we are now trying to understand that how that should be the primary. So shifting the focus from Grihastha to Ashram. That's what we are discussing right now. In the word Grihastha Ashram, we are trying to shift the focus from Grihastha to Ashram. That was the purpose of these first few slides. Okay. तो अब कोई बोलेगा अरे प्रभु जब यही सब अगर है तो फिर बनाया क्यों दूसरा आश्रम? बोली क्यों रहे हो? ब्रह्मचारी आश्रम में ज्वाइन कर लेते. So why? I mean, if so things are so same, then why different ashram? Let us see. Because different ashrams, they offer a suitable environment for growth of Krishna consciousness. To appreciate this example, let's imagine this example of sweet rice and container. What is important? Container or sweet rice? But without container, it will be difficult. इधर फैल रहा है, उधर फैल रहा है, गिर रहा है, क्या प्रभु ये हाथ में दे दिया. पर कटोरी चम्मच भी चाहिए रहता है कभी कभी किसी को. तो किसी को हाथ में ही चलता है, किसी को कंटेनर चलता है, किसी को स्टील का चलता है, किसी को डिस्पोजेबल चलेगा. कोई नया डिस्पोजेबल नहीं खाता है, प्लास्टिक है तो स्टील में लेंगे. कोई को चम्मच भी लगता है तो कंटेनर. लेकिन मेन क्या है? स्वीट राइस, right? Another example one devotee was giving that, let there be even if there is an expert surgeon, an expert surgeon can't perform operation under a tree. He will need operation theater. So that's the role of environment. Role of environment cannot be neglected. We should never make the mistake. Even though the substance is important, though sweet rice is important, container is also very, very important. Otherwise, surgeon could have been doing, he is a very expert surgeon. He is number one surgeon of the world. Can he do surgery under the tree? No, he needs operation theater. Some instruments are needed, some facility is needed, right? Like that. That's one reason. Second, everybody must get trained as a brahmachari to begin with. That's why it is so important. Then we are just talking about, even though there are different ashrams, everybody has to first get trained as a brahmachari. Then only he will be a lifelong nice brahmachari or lifelong nice householder. And we have to make choice based on what suits us the best. So there is no first prize or second prize. Just like Hanuman ji is not feeling, अरे यार किधर 10 रस में मेरे को बढ़ा के डाल दे. माधुर रस के लोग पढ़ रहा है, किसी की तरह 5 रस 10 रस. हम लोग 10 रस तो शुरू करते हैं ऐसा. 10 रस, शांत रस, 10 रस, साख्य रस, मात्सल रस, माधुर रस, ऐसा. तो हनुमान जी को लगेगा अरे क्या मेरे को ऐसे ही क्यों होना था मेरे साथ. ऐसा नहीं लगता है उनको. हनुमान जी इज कंप्लीटली हैप्पी एंड सेटिस्फाइड. उनको दूसरा भी दोगे बोलोगे नहीं मेरे को यही अच्छा लगता है. So the one example which is given is like एक छोटा glass है, एक बड़ा glass है. But this glass is also full, this glass is also full. So only objectively speaking, we make such distinction in terms of the degree of intimacy. Otherwise, with respect to constitutional position, with respect to its ability to satisfy us, हमारे constitutional position के हिसाब से हम completely satisfied होंगे. Similarly, Grihastha Ashram, Brahmachari Ashram is like that in one sense. Of course, socially, we are supposed to respect the renounced order. But spiritually, as Prabhupada said in the previous purport, it's just a form. The substance is the same. And we know that famous purport of Gajendra Pastime, right? Wherein Prabhupada tells, probably Prabhuji must have said in today's class, I could not attend, unfortunately. But so we choose that environment which is suitable for us. So some are light travelers, some are heavy travelers by nature. देखा है आपने? Some people like my caste बनिया गुजराती kind of people, वो पूरा एकदम लेके जाएंगे सब. कल का खाना, शाम का खाना, सुबह ट्रेन लेट हो गई तो उसका भी ब्रेकफास्ट सब लेके जाते हैं आराम से. मारवाड़ी बनिया गुजराती टाइप्स. I'm not demeaning it. I'm just saying that nature है. वो नहीं करेगा तो उसको अच्छा नहीं लगेगा. वो कर लिया तो आराम से भक्ति कर लेगा. और कोई दूसरा बोलेगा कितना सामान लेके जाएगा भाई आदमी, एक झोला लेके जाओ बहुत हुआ. Some are light traveler, some are heavy traveler. So वही है, और उसको उसमें पीस मिल रहा है, उसको उसमें पीस मिल रहा है. No problem. Peace is more important. Practicing Krishna consciousness. That's why these different ashrams are there. And land animal, water animal, Gajendra Pastime, we see that. So how Grihastha Ashram works? So ultimately, all of us are supposed to get realizations. That's the purpose of life. Realization of what? That's why it is important. Like you must have heard this, Shravanam, Mananam, Nididhyasanam. Shravanam means what? Hearing. Mananam means what? Contemplating on those instructions. Nididhyasanam means what? To collect those instructions and to look forward to apply them in our life. Right? These are 3 stages. Now, some do this directly.
Some they need to experience to be able to realize it. So we need experience to be able to realize it. Now it's important to understand experience of what and realization of what. So experience of what? Experience of opposite sex, experience of family, experience of comfort, experience of bank balance, experience of emotional security. धन यौवन पुत्र परिजन, इसका एक्सपीरियंस वो बता गई थे कि आचे परितिथि रे एक्सपीरियंस इसका और वो रहता है तो मेरे को ठीक लगता है। जैसे गोविंद घोष के साथ हुआ था, चैतन्य महाप्रभु के साथ वो ट्रेवल कर रहे थे, तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला अरे खाने के बाद जाओ जरा सौंफ लेके आओ, तो गए तो लेके आ गए सौंफ, और लेकिन काफी टाइम बाद आए, तो नहीं सॉरी बहुत टाइम ढूंढने के बाद आए, हाँ अब याद आ गया, तो चैतन्य महाप्रभु ने जाओ सौंफ लेके आओ खाने के बाद, यू नो, तो ही वेंट एंड इट टुक लॉट टाइम फॉर हिम टू सर्च, यू नो, मधुकरी करने जाए, कहीं जा रहे मिला एक जगह मिला, तो काफी टाइम बाद लौट के आए, लीजिए महाप्रभु सौंफ, ओके वेरी नाइस खा लिया। अगले दिन जब प्रसादम के बाद चैतन्य महाप्रभु ने बोला तो तुरंत आ गए वापस, बोले अरे आज कैसे इतना जल्दी आ गए, बोले कल ही मैंने कलेक्ट करके रख लिया था आज के लिए, बोला ओके गो गेट मैरिड। You know, because this mentality of to secure our future little bit, हाँ सब ठीक है, ये सब ठीक है, हाँ अब भक्ति करेंगे, अच्छा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम like that. So that's the nature, you know, इसमें ऐसा कुछ खराब अच्छा नहीं, हम लोग नहीं समझते अरे क्या ऐसा क्यों भगवान ने ऐसा क्यों नहीं बनाया, अरे जो भी बनाया कृष्णा को प्रैक्टिस करो ना अभी, let us become pure, let us be honest and let us become pure, let us practice Krishna consciousness in the best possible way. So experience of those things will help us realize that there is only suffering in Maya service. Maya das Sadavdas, Krishna das Vrindas. You have heard this. So there's only suffering in Maya service. So that is what we realize. But there is a star mark. Star सब गड़बड़ करता है. Conditions apply. उस star में क्या लिखा है? Just the experience will not give realization. It will experience सब कोई कर रहा है. किधर realization हो रहा है किसी को? Experience under the shelter of Hari, Guru and Vaishnavas. Experience under the guidance of Guru, Sadhu, Shastra. That will lead to realization. Just experience does not lead to realization. और इसके लिए देखो, being close to devotees, coming to temple, association is so important. तो experience तो होगा, वो तो नहीं जाएगा, आप घुस गए हो तो experience तो सारा होगा अब, लेकिन उस experience से realization होगा कि नहीं, that depends on whether we are in association of devotees or not. Otherwise, the purpose will be defeated. Just experience does not give realization. नहीं तो जितने भी 90 साल के लोग हैं बुजुर्ग, सब प्योर डिवोटी होने चाहिए थे ना, नहीं है, एक्सपीरियंस है खाली, राइट? हाँ, मटेरियल विजडम आ जाता है, मटेरियल विजडम आ जाता है, आई मीन दैट वी शुड नेवर, जैसे हमारे पेरेंट्स होते हैं, एल्डरली लोग होते हैं, वी शुड नेवर निग्लेक्ट देम, इनको क्या पता, व्हाट शास्त्र दे हैव रेड, मटेरियल विजडम आल्सो हैज लॉट ऑफ वैल्यू, दे हैव सम मटेरियल विजडम, उसको हमको लेना है और शास्त्र को भी विजडम जोड़ देना है, तो सोने पे सुहागा हो जाता है, यू सी। सो देयरफॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस इज नॉट अबाउट रिजेक्टिंग समथिंग, इट इज अबाउट यूजिंग एवरीथिंग टू अचीव द पर्पस ऑफ लाइफ. So how Grihastha ashram purifies? Two ways how Grihastha ashram purifies. One is duty करना आसान नहीं है प्रभु. It's not easy. Student life is the best life. Why? कोई responsibility नहीं. बच्चा life is not that best life. Why? तो क्या रे ये मार देता है कि वो बजा के चला जाता घंटा. मैं बोलता हूँ ये कर लो, नहीं करोगे. पापा ये करना है, सब चीज के लिए परमिशन मांगो, एक एक चीज के लिए. यूनिफॉर्म पहन के स्कूल जाना पड़ता है. कॉलेज में देखो कोई भी कलर का कपड़ा पहन के जाते हैं. कोई क्लास जो मन करो नहीं करो, अपने ऊपर डिसाइड करो. तो बच्चा थोड़ा परेशान रहता है, और एडल्ट तो इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी है. स्टूडेंट लाइफ में क्या है ना, जिम्मेदारी ज्यादा है, ऊपर से सप्लाई हो रहा है, ना अकाउंटेबिलिटी भी बहुत ज्यादा नहीं है, अपना खुद का मालिक है सब. 4 साल क्या करा मालूम नहीं. तो स्टूडेंट लाइफ दैट वे इज वेरी वेरी लग्जूरियस लाइफ, क्योंकि एक बार उसके बाहर निकले, अभी जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, पेरेंट्स, वाइफ, फैमिली, क्रिएटिंग अ हाउस, अर्निंग मनी. वी ऑल नो इट इज नॉट इजी टू अर्न मनी. देन चिल्ड्रन हो गया, उसका चिल्ड्रन का रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्कूल का एडमिशन, फीस भरते चला जा रहा है. मनी इज सो इम्पोर्टेंट, नथिंग कैन हैपन विदाउट मनी, इट्स अ फैक्ट. कोई अगर बोलता है नहीं मनी कृष्णा विल सप्लाई, ऐसा नहीं होगा. अल्टीमेटली कृष्णा सप्लाइज, बट वी हैव टू वर्क, राइट, एंड स्ट्रगल फॉर मटेरियल. नोबडी विल गिव यू मनी फॉर, यहाँ आपका चेहरा अच्छा लगेगा, कितना पैसा चाहिए, ऐसा थोड़ी कोई करेगा. मेहनत करना पड़ता है, हार्ड वर्क करना पड़ता है. किधर से 24 घंटे सबके पास है ना. Sachin Tendulkar became Sachin Tendulkar in 24 hours. Ambani became Ambani in 24 hours. We will become whatever in 24 hours only. Right? So we have to use 24 hours in proper way. तो स्ट्रगल है, क्या क्या करेगा आदमी. मतलब एक आम आदमी जो रोड पे चल रहा है, एक हाउस होल्डर, वो पूरा बिजी है, फोमिंग एट माउथ है. वो जो कर रहे हैं भाई हम भी कर रहे हैं, तो हम भी तो फोमिंग एट माउथ हो गए. प्लस टेम्पल जाना है, प्लस
हमने कुछ गोल ऑफ लाइफ बनाया तो ऐसा नहीं जब जो मन कर रहे हैं तो रूल्स फॉलो कर रहे हैं, विच ऑल्सो क्रिएट्स लॉट ऑफ प्रेशर। प्लस हमको खाली अपने लिए नहीं जीना है, दूसरों के लिए जीना है, तो प्रीचिंग कर रहे हैं, इधर से उधर जा रहे हैं, तो सोचो कितना डबल ट्रिपल 4 टाइम्स 5 टाइम्स, बाप रे बाप, कैसे करेगा ये सब रास्ता? तो प्यूरिफिकेशन होगा ना, इसलिए करेंगे, हैप्पीली करेंगे। कम से कम जंगल जाने तो नहीं बोला, ठीक है, कम से कम 50,000 साल तपस्या करने तो नहीं बोला, उससे तो अच्छा है ना। जैसे कैसे होता है, कभी कभी कोई आपको किसी से शादी करना चाहते हो, पूरा देख के अपने डिवोटी है, बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया, पेरेंट्स बोले नहीं ये इस कास्ट के नहीं है, ये नदी के इस पार की नहीं है, नदी के उस पार की है, इसलिए आप नहीं शादी कर सकते। तो फिर क्या करना पड़ता है, उनको बोलना पड़ता है ठीक है जाओ ब्रह्मचारी बन जाओ, बोलेगा नहीं 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 कर लो कर लो कर लो। तो कभी कभी जब हम ज्यादा डोज दे देते हैं तो उससे फिर अपना आराम से कम छोटा वाला एक्सेप्ट करने में रेडी हो जाता है। तो सिमिलरली हमको ये बोला जाएगा कि अच्छा ये आपको स्ट्रगल लग रहा है, नो प्रॉब्लम, एक काम करो 50,000 साल जाके तपस्या करो, एक पैर पे खड़े रहो, कुछ खाने पीने को नहीं मिलेगा, नहीं 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 ये ठीक है। So we have to sometimes also compare whatever price we have to pay, whatever struggle we have to go through, sometimes we should compare that with much bigger struggle so that we can understand that नहीं नहीं फिर भी ये मर्सी ही है। हम जैसे नालायक को भी कृष्ण प्रेम जैसा गोल अगर मिलना है केवल इसके लिए, तो भी ये मर्सी ही है। Some 4 regulative principles, this is also mercy only, this is discounted है, बहुत डिस्काउंट पे है, ऐसा नहीं क्या इतना कीमत ले लिया, अरे डिस्काउंट पर है भाई। तो असली प्राइस, अभी मान हम गाड़ी लेने जा रहे हैं, सामने वाला कितने का है, 20 लाख का है, तो कितना ले रहा है, बोलेगा असली दाम पता है क्या तुमको, असली हम 100 लाख है, नहीं हाँ 20 लाख में दे दो, डिस्काउंट मिला। तो इसलिए असली दाम पता करना जरूरी होता है। So that is what another purpose of reading hearing, so that we can understand what is the goal we are talking about. नहीं तो we take that goal lightly और थोड़ा भी प्राइस पे करना पड़ता है, इसके लिए इतना क्या प्राइस देना। That's so there are so many purposes of reading hearing. So that is one way Grihastha Ashram purifies the struggle which we go through. And second is there will be no shortage of situations when you will realize you are not the controller and you will be forced to come. आदमी सोचता है मैं मालिक हूँ घर का, मैं सब कर रहा हूँ, 5 दिन बाद पता चलेगा मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, तो आएगा ना realization I am not the controller. And there will be situations when you will be forced to become humble. Ultimately goal of life तो ये ना humble बनना है हमको। हम सोच रहे थे हम सब कर सकते, नहीं कर सकते, right? So and then I was reading somewhere interestingly that there are not just mother-in-law daughter-in-law problems. I'm just giving a hint. Grihastha Ashram will give wholesale lot of situations for our purification. There are Bhagavatam is full of father-in-law daughter-in-law problem also, it describes Daksha and Shivji. So Grihastha Ashram means conflicts, problems, relationships, so many things are there, right? So there will be no shortage. Okay, so anyway, so now we have understood how Grihastha Ashram works. First was what? Shifting focus from Grihastha to Ashram. Second part of the presentation was what? How Grihastha Ashram works, the science behind it, how it purifies us, how it helps us achieve the goal. Now we come into some third part about, okay, what are some other purposes of Grihastha Ashram? Why we enter into it? In addition to goal of life. Marriage is not to become happy. Those people who are thinking by getting married I'll become happy, they are mistaken. We don't marry to become happy. In fact, we don't do anything in life to become happy. We should not do that. If we chase after happiness, it will only run away. We have to run behind Krishna. We have to run behind devotees. We have to run behind Bhagavatam, chanting. Then happiness will automatically come. So marriage is not supposed to make you happy. It is supposed to make you married. And once you are safely and totally married, you have a structure of security and support, which enables you to practice Krishna consciousness. And that makes you happy. Your practice of Krishna consciousness makes you happy. Like that. So there's this nice cartoon I came across. There was this person crying, I want happiness, I want happiness. One devotee is coming, taking that board and he is rubbing off I and want. If you rub off I and want, what will remain? So I को हटाइए, मतलब self-centric को हटाइए, and want को हटाइए. तो अपने आप happy हो जाएंगे by serving Krishna. Okay, second, protects us from Maya. Another purpose of Grihastha Ashram. Now, when we compare it to other ashrams, right? Prabhupada is calling that this is a safe ashram. Why it is a safe ashram? This sloga, Yamashritendriyaratin durjayan itarashramaye vayam jaye mahilabhir dasyun durga patiryatha. याम आश्रितेन्द्रियारातिन दुर्जयान इतर आश्रम है, जो बाकी आश्रम के लिए बहुत डिफिकल्ट है. दुर्जयान इतर आश्रम है, जो बाकी आश्रम के लिए बहुत डिफिकल्ट है, वो गृहस्थ आश्रम में इजी हो जाता है. क्या?
As a fort commander very easily conquers invading plunderers, by taking shelter of a wife, one can conquer the senses which are unconquerable in the other social orders. So Prabhupada writes in the purport that this lust and all these things are very difficult to conquer, and many and other ashrams they struggle a lot with this. But the Grihastha, because he is in the protection of the wife, it's in a controlled, regulated way under some rules and regulations. So he is that way protected. You understand how it is coming? So therefore, it is called as a nice boat in a stormy ocean. It's like a fort, and you are protected. You are not independent or whimsical. अरे कहाँ गया आदमी नहीं पता नहीं 5 दिन से घर ही नहीं आया है, क्या तो कर रहा है मालूम नहीं. ऐसा नहीं हो सकता गृहस्थ आश्रम में. 1000 कॉल आ जाएगा, फोन आ जाएगा, पुलिस में कंप्लेन है, कहाँ है आदमी. नहीं तो भैया ना ब्रह्मचारी आश्रम में ना गृहस्थ आश्रम में घूम रहा है, क्या पता किधर मजा कर रहा है. अरे कोई ड्यूटी नहीं, कोई responsibility नहीं. So Grihastha ashram protects us. Brahmacharya ashram also. So therefore we have to be in one ashram or the other. We have to be in one ashram or the other. Otherwise we are not serving on anyone. Na? We are just on our own whims and fancies, our own mind and senses we are serving. There is no check and balance. Grihastha ashram hai. तो एटलीस्ट आप जो कर रहे हो सबको वाइफ को बच्चों को सब पता चल रहा है, किसको कहाँ क्या जाके बोल दे क्या मालूम. जैसे वॉइस में बोलते हैं ना, इंटरनेट है पर हाँ यू हैव टू बी इन हॉल में इंटरनेट पर, ऐसा नहीं कि एक रूम में कोना में बंद करके इंटरनेट है, राइट. सो दैट इज आल्सो देयर इन गृहस्थ आश्रम, टू सम एक्सटेंट. या टू अ लार्ज एक्सटेंट देयर इज लॉट ऑफ प्राइवेसी, जो आपका डांट किसी को भी चुप करा दोगे, राइट. लेकिन एटलीस्ट यू विल नॉट बी एबल टू क्रिएट अ फॉल्स शो, राइट, बिकॉज देयर आर पीपल इनसाइड देयर हु आर सीइंग यू इनसाइड आउट. तो फिर अगर आप सच में डिवोटी बनना चाहते हो तो अंदर से भी बन जाओगे, बाहर से भी बन जाओगे, भले ही रगड़ रगड़ के बनेंगे पर बन तो जाएंगे ना आश्रम में अगर हैं तो. यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग. इसलिए वंस राधानाथ महाराज वाज टेलिंग दैट द सक्सेस ऑफ अ गृहस्था is if his children become initiated devotees in spite of seeing all that which he is doing at home. Matlab he is setting a good example at home, then only na. Otherwise children can become anti-ISKCON also if you are not setting a good example, if you are not careful. And the success of brahmacharis is if their parents become initiated devotees, because it's like a very big attack on parents to join ashram, to join brahmachari ashram, right? But by your behavior, by your example, by your loving dealings, by becoming a better son, they are so inspired that they actually are saying, हाँ ये हम भी कर, तुम क्या हम भी join करें. That is success. You see, so deep actually this is. Okay, so we know there are apparent differences between grihasthas and brahmacharis. What are the differences? वो shelter in the form of wife and environment where you can regulate artha and काम according to dharma to get moksha. That is grihastha ashram. वहाँ भी एक shelter है पर वो shelter का form दूसरा है. और ब्रह्मचारी का shelter क्या है? Strict rules and regulations and engagement in services of guru. Correct. That is brahmachari. गृहस्थ में regulated sense gratification. It is said that we have a license for sense gratification, but license does not mean now we बिंदास सुबह से रात तक sense gratification ही चल रहा है. That's not what license means. आपको गाड़ी चलाने का जब license मिलता है तो इसका मतलब ये होता है कि अब गाड़ी उठाया किसी के ऊपर से भी चला लीजिए. लाइसेंस है भाई, है ना सबके पास लाइसेंस, 2 व्हीलर 4 व्हीलर. हाँ, तो इसका मतलब क्या कि जहां मन वहां चलाएंगे. आप गाड़ी लेके अपने घर के सीढ़ी के ऊपर चढ़ते हुए घर में चले जाएंगे, तो इसी को चलाते हुए खेत बाग सब उधर से लाइसेंस है. नहीं, लाइसेंस मतलब क्या? लाइसेंस मतलब हाँ चला सकते हैं आप गाड़ी, लेकिन चलाना तो रोड पे ही पड़ेगा ना, रूल फॉलो करना, रेड लाइट पे रुकिए. सिमिलरली लाइसेंस और सेंस एंजॉयमेंट मतलब ये है, ठीक है कर सकते हैं लेकिन रूल्स हैं. ऐसा नहीं कि अब ओके डन, बिकॉज मेनी टाइम्स वी यूज द वर्ड लाइसेंस रॉन्गली. एंड उधर में नो सेंस ग्रेटिफिकेशन. पर उधर भी है ब्रह्मचारी आश्रम भी ऐसा, वैसा पुराने जमाने वाला ब्रह्मचारी आश्रम नहीं, सो कल्टिवेट एटलीस्ट दे विल स्ट्राइव टुवर्ड्स. मतलब एक ब्रह्मचारी के पास सब फैसिलिटी होगा फिर भी वो बोलेगा नहीं मुझे ये वाला फोन दे, मेरे लिए अच्छा है, मेरे आश्रम के लिए अच्छा है, व्हाटएवर, बट पर्पस के लिए यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल. हमको पता. ये गृहस्थ क्या करता है? इंटरनल रिनंसिएशन कल्टिवेट करता है. क्या है मेरा? कुछ नहीं, कल ही फोन खरीदे थे टूट गया, छोड़ो. मतलब इंटरनल धीरे धीरे उसको इंटरनल रिनंसिएशन आएगा. और ब्रह्मचारी इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल रिनंसिएशन भी उसको करना है. जैसे हमने देखा गृहस्थ होम को टेंपल बनाता है, ब्रह्मचारी टेंपल को होम बनाता है. गृहस्थ आर द अर्निंग मेंबर्स ऑफ सोसाइटी, दे आर द नॉन अर्निंग मेंबर्स ऑफ सोसाइटी. सो दीस आर सम डिफरेंसेस. हाउएवर व्हाट आर द सिमिलरिटीज? एज वी हैव सीन, गोल इज द सेम, रूट डिफरेंट है बस. सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग ब्रह्मचारी को करना चाहिए, गृहस्थ को नहीं. ट्रू और फॉल्स? फॉल्स. दोनों के लिए एप्लीकेबल है. सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग. वी डोंट हैव टू गेट सो मच entangled in the complications of this material civilization. We don't have to get carried away by the current of this consumerism. Rising early दोनों के लिए ट्रू है. श्योर कि नहीं श्योर?
अब अर्ली का डेफिनेशन क्या है वो दूसरी बात है, थोड़ा एडजस्टमेंट कर सकते हैं, राइट? But if you really want to make progress in spiritual life, then we have to rise early in the morning, because that's the only time we have got. Now, sometimes exceptions may be there. Sometimes some temporary situation may not allow it. That's fine. That's fine. However, we have to realize, and we will come to this realization, especially in Grihastha ashram, that अगर सुबह chanting नहीं किया, सुबह किया तो कितना टाइम लगेगा chanting करने में? 16 राउंड। नहीं किया तो कितना टाइम लगेगा? 24 घंटा। अभी आप नहीं हो ना गृहस्थ आश्रम में, इसलिए बोलते, ये बोलते 3 घंटा। कौन कौन मैरिड था? हाथ खड़ा किया था। हाँ, पर जो मैरिड, वो जो कि प्रॉपर घर में रह रहा है और जिम्मेदारी उठा रहा है, वो सब हाथ उठाओ। हाँ, तो अगर सुबह 2 घंटा चैंटिंग नहीं है तो कितना टाइम लगता है? मतलब करीब करीब 24 घंटा हो ही गया। आप बोलो 3 घंटा लगता है, क्योंकि एक बार आपको सुबह का टाइम गया कि एक बार राधेश्याम प्रभु एक क्लास में बता रहे थे कि एक पुरुष जो है ना, उसके पास केवल ब्रह्म मुहूर्त का टाइम उसका टाइम। अब उसमें सोए, जॉगिंग करे, योगा करे, चैंटिंग करे, जो करना है उसको, आप वही टाइम उसका है। क्योंकि एक बार बच्चे उठ गए, घर पूरा जाग गया, तो अब आपको थोड़ा टाइम फैमिली को देना है, थोड़ा फिर उसका दिन का टाइम शुरू हो गया तो ऑफिस का टाइम है, आपका टाइम नहीं है। शाम को वापस फैमिली का टाइम है, तो आपके पास टाइम नहीं, आपका टाइम है ही नहीं जिसको आप क्लेम कर सकते हो मेरा टाइम। बाकी चैंटिंग करना मतलब आप कोई ना कोई ड्यूटी को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, तो कभी कभार एक्सेप्शंस है, लेकिन कोशिश यही रहनी चाहिए। दैट्स व्हाट वी हैव टू। चैंटिंग 16 राउंड दोनों को करना है। साधना, सेवा, स्वाध्याय, सिद्धांत, सदाचार, संज्ञा दोनों को करना है। डॉस, डिसिप्लिन, ओबीडियंस एंड सेल्फ कंट्रोल दोनों को करना है। लाइफ सेंटर्ड अराउंड कृष्णा, which you have already seen. So even though we have seen that this is like a detour because of that experience, श्रवणम, मननम, निधिध्यासनम के बदले हम एक स्टेप और डाल रहे हैं बीच में, वो है एक्सपीरियंस का, जिससे रियलाइजेशन आएगा। Even though it's like a detour, because it is a system designed by Krishna, it is perfect, and if we choose to enter, it is not a compromise but our submissiveness to Krishna's system. Just like for Hanumanji, Dasaras is wonderful and perfect. So similarly, based on whatever is our pravritti, inclinations, conditionings, attachments, anarthas, whatever it may be, for us, this is best at this point in time. So this is not a compromise. This is the best. Success in spiritual life is not about doing the best. There is no the best in spiritual life. Everything is relative, right? It's about doing your best. And my best is this. So therefore, this is not a compromise. This is rather submitting ourselves to Krishna's system. So since it is Krishna's system, it has some ashram specific purposes as well. अब कृष्णा एक बार में एक काम थोड़ी करते, खाली आपके उद्धार का काम थोड़ी कर रहे हैं वो। उन्होंने ऐसा सिस्टम बनाया है कि चलो कुछ गृहस्थ लोग होंगे तो उससे बाकी का भी उद्धार हो जाएगा। आपका तो जो होगा आपने तो अपने हिसाब से डिसाइड कर लिया आपके लिए। But since it is Krishna's system, therefore Krishna has put some specific rules and responsibilities for Grihastha ashram, by which some other things are also getting achieved automatically. The society is functioning very nicely. There are some ashram specific purposes as well. जैसे सबसे important क्या है गृहस्थ का? To support other ashrams. That is actually one of the purposes of Grihastha ashram. Now, if somebody wants to become a brahmachari, he should not think, no, Prabhuji, I want to support other ashrams, therefore I become Grihastha. No. This is not that criteria to decide. Criteria to decide we have already seen based on who we are. Now, if you have decided and you are here, by the way, okay, there are these wonderful other things you can do. Are you getting how it is? Right? So we should never make some wrong things as a decision criteria. There also we make a lot of mistakes at times. कोई बोलेगा, कोई let's say somebody is deciding, wanting to choose. अरे गृहस्थ आश्रम में बाप रे इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना पड़ता है, पत्नी भी, पेरेंट्स भी, बच्चे भी, कमा के भी लाओ और फिर कृष्णा कॉन्शियसनेस भी प्रैक्टिस करो। उससे अच्छा तो यही है, रॉन्ग रीजन टू चूज ब्रह्मचर्य आश्रम। 5 साल बाद छोड़ देगा वो। रॉन्ग रीजन टू चूज ब्रह्मचर्य आश्रम। So we should know what is the criteria of deciding. Criteria of deciding is मेरा, हम कौन है, हमको कौन सा एनवायरनमेंट मेरे को चलेगा। अभी उस एनवायरनमेंट में जो प्राइस पे करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा। प्राइस के बेसिस पे डिसाइड नहीं करना है। अरे किधर कितना प्राइस ये दे दो, अरे वो चीज मेरे लायक है ही नहीं भाई। तो चीज के हिसाब से डिसाइड करना है, हमारे हिसाब से डिसाइड करना है, उसके साथ जो प्राइस टैग है वो जो है वो देना है, ना कि पहले हम प्राइस देख रहे हैं इसमें कितना कम प्राइस कम। कन्वीनियंस शुड नेवर बी अ क्राइटेरिया टू टेक डिसीजंस। दैट इज इन मॉडर्न कल्चर। कन्वीनियंस के बेसिस पे सब डिसाइड करते हैं, जिस वजह से शरीर का भी बैंड बज रहा है, मन का भी, बुद्धि की शक्ति, आत्मा की शक्ति, मन की शक्ति, तन की शक्ति सब कमजोर हो रही है। कौन कौन सी शक्ति? तन की शक्ति जरूरी है, मन की शक्ति जरूरी है, बुद्धि की शक्ति जरूरी है, आत्मा की शक्ति जरूरी है। ये चारों पांचों शक्ति चाहिए और बच्चों को ऐसा ट्रेनिंग देना चाहिए। All these have to be taken care of nicely. But because of not following certain things and because of taking decisions based on convenience,
आटा चक्की नहीं, अब वो वाला घर वाला चक्की खत्म हो गया धीरे धीरे, एंड ऑफ कोर्स नाउ वी आर नॉट सेइंग वी ऑल गो बैक टू दैट, पर पॉइंट इज जो मटेरियल सिविलाइजेशन है उसका जो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस है हम सबको उसका पार्ट बनना पड़ेगा, हम सबको उसका कॉन्सिक्वेंसेस झेलना पड़ेगा, बट एटलीस्ट प्रिंसिपल समझ सकते हैं हम कि अब जो आगे हमारे हाथ में है उसको रिटेन करें, जो हमारे हाथ में नहीं है उसका क्या कर सकते हैं। So therefore the simple living high thinking all that is so important. Therefore a grihastha, he is supposed to be enlightened and he is supposed to be wise so that he can take decisions properly. Not that he is just getting, पड़ोसी ने बड़ा गाड़ी लिया तो हमको भी लेना ही पड़ेगा, तो फिर फंसते चले जाओ। वो बंदर का स्टोरी ना, जंगल में गया, एक टीन का डिब्बा था, चमक रहा था, एकदम शाइन मार रहा था, हाथ घुसाया अंदर, निकला ही नहीं, फिर दूसरा हाथ घुसाया, निकला नहीं, पैर भी घुसा लिया, मुंह भी घुसा लिया, पूरा डिब्बा में घुस गया, पूरा इंटैंगल हो गया पूरा, right? So we have to, उसको strength कहाँ से आएगा to make sure that we are not entangled? Reading, hearing, chanting, association. So this is but important purpose of Grihastha ashram. Not a criteria to decide whether you want to join ashram or not, but once you have decided, then this is one of the important purposes of Grihastha ashram. इसके लिए बनाया है कृष्णा ने Grihastha ashram, to support other ashrams. क्योंकि केवल ये Grihastha ashram is earning. अब मंदिर कैसे चल रहा है, कहाँ से आ रहा है पैसा बताइए, कौन दे रहा है? गृहस्थी दे रहे हैं, वहीं से आ रहा है पैसा। तो ब्रह्मचारी आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, सन्यासी आश्रम, none of them earn money. Only this ashram is supposed to earn money. तो earn money जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर कोई बोलेगा नहीं मैं गृहस्थ भी हूँ, ना मैं बच्चा पैदा करूंगा, ना मैं पैसा कमाऊंगा, अरे तो फिर कर क्या, तो घुसे क्यों गृहस्थ आश्रम में? Now exceptions can be there. Some spiritual master can give special instruction to somebody. Those things are there. But in general, the guidance is that you are supposed to earn money in Grihastha ashram to be able to support. Because anyway आप अपने लिए कमाओगे, तो अगर उसको केवल अपने लिए यूज करोगे तो प्यूरिफाई नहीं हो रहा है, इसलिए आपको देना ही पड़ेगा, करेक्ट? क्योंकि अपने लिए कमाओगे नहीं तो कौन मेंटेन करेगा, इसको नहीं मेंटेन करेगा। अब आप बोलो मैं आ गया पूरा, मेरे को मेंटेन करिए, मेरे पत्नी और बच्चों के साथ रूम दीजिए मेरे को यहाँ पर, ऐसा थोड़ी होता है, नहीं हो पाएगा, उतना नहीं अभी हो पाया है। और वो बहुत ऐसे क्षत्रिय लोग हों, राजा लोग हों, तब जाके मंदिर में आपको सेवा मिल गया, मंदिर में रह रहे हो, वो सब स्पेशल केसेस है, पर इन जनरल हर एक के लिए वो सुटेबल भी नहीं है। सून यू विल सी दैट नहीं मेरा यहाँ सारा नीड पूरा नहीं हो रहा है, बच्चे का स्कूल का फीस ज्यादा है या जो भी है, राइट? तो अब हर गृहस्थ को अपने आप को सपोर्ट करना है, उसके लिए उसको पैसा कमाना है, पर वो केवल अपने लिए पूरा पैसा यूज करेगा तो वो ऑफरिंग नहीं हो रहा है, प्यूरिफाई नहीं हो रहा है, तो इसलिए वो देना पड़ता है, इसलिए। और उससे ऑटोमेटिकली कृष्णा ने ये सिस्टम बना दिया, उससे ऑटोमेटिकली इसका भी काम हो गया, उसका भी काम हो गया। You see how, I mean, Krishna is wonderful in whatever he creates if we follow those instructions. Yeah, so so supporting all the other three ashrams and to produce Krishna conscious children. अरे गृहस्था नहीं होता तो हम सब यहाँ नहीं बैठ के होते गृहस्थ आश्रम का सेमिनार कर रहे होते। कोई ब्रह्मचारी ही नहीं होता, हम तो चलो फिर भी गृहस्थ आश्रम की बात कर रहे हैं, कोई ब्रह्मचारी ही नहीं होता, कोई सन्यासी भी नहीं होता, और बता बिना गृहस्थ के, राइट? सो दैट्स ए इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा चलो आपको रहना है वाइफ के साथ, आपको बच्चा पैदा करना है, तो आप एक काम करो, आप कृष्णा कॉन्शियस बच्चा पैदा करो, आप जिम्मेदारी उठाओ अच्छे सिटीजन को क्रिएट करने का वर्ल्ड में, राइट? लाइक वन सन्यासी वाज टेलिंग, द प्रॉब्लम इज नॉट पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, द प्रॉब्लम इज व्हाट द पॉपुलेशन इज डूइंग, दैट इज द प्रॉब्लम। सो वी शुड क्रिएट गुड पॉपुलेशन, देन ऑटोमेटिकली थिंग्स विल नाइस। तो ये जिम्मेदारी किसके ऊपर है? गृहस्थों के ऊपर है, और इसके डिटेल्स हम लोग आगे वाले सेशन में देखेंगे। ओके, very important purpose of Grihastha ashram. Purpose of Grihastha ashram is not to get some privacy and to go away from devotee. अरे बहुत devotee सारा टाइम, सुबह उठो तो devotee, शाम को उठो तो devotee, दोपहर में devotee, शाम को प्रसादम भी अगल बगल devotee। अरे कोई छोड़ेगा अकेला मेरे को? That's not the purpose of Grihastha ashram, to run away from association of devotees. ठीक है, mainly it provides that environment, but if that is the principle, then we will never get into devotee association and then it will not be Grihastha ashram. सो एग्जाम्पल है ना प्राइवेट वार्ड का और जनरल वार्ड का, हम कौन है? पेशेंट है, पेशेंट को हॉस्पिटल में मत क्यों, ये हमारा चॉइस नहीं होना ही है। अगर इफ यू रियली वांट टू फुलफिल द पर्पस ऑफ योर लाइफ, चॉइस आपके पास ये है कि जनरल वार्ड में होना है कि प्राइवेट वार्ड में। ब्रह्मचारी आश्रम इज जनरल एंड गृहस्थ आश्रम इज विद अ नर्स आल्सो, अगर आप खुशकिस्मत हो तो। ऐसा बहुत बार हम लोग ऐसा लेक्चर देते हैं ना, तो यूट्यूब लोग बहुत अच्छा इमेज बना लेते हैं, wife will serve me, things will be nicely taken care of. ऐसा कोई गारंटी नहीं, कहीं नहीं लिखा है ऐसा, नो गारंटी। उसके लिए फिर दूसरा सेमिनार है, हाउ टू केयरफुली चूज अ लाइफ पार्टनर। ऐसा नहीं हाँ मैं तो शादी कर लिया तो वाइफ है तो ये सब तो जो लिखा है शास्त्र में वो होगा ही, कुछ नहीं होगा, ठिंगा वो जीरो होगा, गारंटी। हाँ, लेकिन अगर आप केयरफुल रहे, आपने थोड़े बहुत सेमिनार अटेंड किए कि भाई अच्छा कैसे एक अच्छा लाइफ पार्टनर चूज करना चाहिए, क्या चीज देखना चाहिए, क्या चीज नहीं देखना चाहिए, क्या प्राइमरी क्वेश्चन है, क्या सेकेंडरी क्वेश्चन है, क्या प्रिंसिपल है, क्या डिटेल्स है, जब तक इसका जानकारी नहीं होगा तब तक आप डू योर बेस्ट कैसे करोगे?
अब वो बात अलग है कि डू योर बेस्ट करने के बाद भी आपका क्या होगा मालूम नहीं, तो वो तो फिर डू योर बेस्ट लीव द रेस्ट तो हमेशा ही है, करेक्ट, बट डू योर बेस्ट तो करना पड़ेगा ना. सो दैट्स अनदर सेमिनार. सो पेशेंट कैन बी अवे फ्रॉम हॉस्पिटल एंड डॉक्टर्स, वो तो हमको चाहिए ही, चाहे आप प्राइवेट वार्ड में रहो चाहे जनरल वार्ड में रहो. Prabhupada, transcendental devotional service cannot be complete and cannot be relishable without the association of devotees. Now, please note, I want to spend 5 minutes on this purport. It's a very, very instructive and very deep purport. Transcendental devotional service, जो हम सब करना चाहते हैं, cannot be complete and cannot be relishable without association of devotees. मतलब अगर हम अकेले बैठ के हम डिवोशनल सर्विस कर रहे हैं, ये सोच रहे हैं कर रहे हैं, अधूरा है, नहीं करते, ये बोल रहे प्रभुपाद. इट कैन नॉट बी कंप्लीट एंड इट विल नॉट बी रिलेशेबल आल्सो. साथ में आते तो मजा आता है, सेवा करते हैं. हाँ, हमको अपना ईगो को किनारे रखना है. अरे इसने वो बोला फिर आ गया यार, फिर ये मेरे को ये करेगा वो करेगा. नहीं, एकदम बच्चा बन के एकदम स्पिरिट सोल के बेसिस पे हम अगर एटलीस्ट एक जगह तो हो पूरे वर्ल्ड में जहाँ हम क्या कपड़ा पहने सामने वाला वो नहीं देख रहा है, मैं कौन सी घड़ी पहना हूँ सामने वाला वो नहीं देख रहा है, हम प्योर हो सकते हैं, हम सेल्फलेसली सेवा कर सकते हैं. मैं सेवा करूंगा तो मेरा फायदा नहीं उठाएगा, उठा भी लिया तो मेरा एडवांसमेंट ही होगा. तो ये चैंटिंग कर रहा है तो किसी ना किसी प्रकार का ड्यूटी है ही. यू सी, तो मतलब ISKCON is such a wonderful thing Prabhupada has given to us. It's at least one place where we can be ourselves, that natural soul वाला self. ह्यूमिलिटी का कोई चिंता नहीं, क्योंकि आप आउटसाइड वर्ल्ड में ह्यूमिलिटी करोगे तो कुछ नहीं होगा आपका. मतलब आई एम नॉट सेइंग दैट वी हैव टू बी डुप्लीकेट, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि बहुत जगह आपको द सिचुएशंस मेक यू टू एक्ट इन अ पर्टिकुलर वे. अभी कंपनी है, आप प्रमोशन है करना है, आपको अप्रेजल, आपको एक छोटा चीज भी नोट करके रखना है, मैंने क्या किया क्या नहीं किया. जैसे प्रमोशन के टाइम में अप्रेजल के टाइम पे आप वो सब निकाल के दिखा पाओ, ये किया वो किया, और बताऊं ये किया, उस दिन रात को भी जगा था, आपको पता है, ऐसा बताना पड़ता है, करेक्ट. तो ऐसा बोलना पड़ेगा बॉस को. तो एट द सेम वो भी इसका मतलब नहीं है कि हम हम्बल नहीं हो रहे. इंटरनल मूड तो वही होना चाहिए हमेशा, पर एटलीस्ट वहां पे एक्सटर्नली तो ऐसा करना पड़ता है ना कम से कम. लेकिन ISKCON एक ऐसी संस्था है, ISKCON एक ऐसी सोसाइटी है जहाँ पे एक्सटर्नली इंटरनली हम सब हम्बल हो सकते हैं, सेल्फलेस हो सकते हैं. So that's a very great thing. So transcendental devotional service cannot be complete and cannot be relishable without association of devotees. We have therefore established, oh यही आ गया लोग, next line वही है. I did not realize. We have therefore established the International Society for Krishna Consciousness. Anyone ISKCON जो है ना, ISKCON, इसका हमको हमेशा याद रखना चाहिए. एक बार सुना था मैं तो भूलता ही नहीं बार. ISKCON, जब भी हम ISKCON लिखा हुआ देखें तो we have to ask ourselves, ISKCON क्या ऑफ हो गया. और दूसरा इसके जैसा कौन, ISKCON. So anyone who is trying to be aloof from this Krishna consciousness society and yet engage in Krishna consciousness is living in a great hallucination, for this is not possible. From this statement by Dhruv Maharaj, जो भी श्लोक है, it is clear that unless one is associated, हाँ ये वो है, Dhruv Maharaj is asking for association of devotees. When he got the darshan of the Lord, he is asking Lord, my dear Lord, please give me, क्योंकि आप तो अभी हो चले जाओगे, कल आप थोड़ी दर्शन मेरे को सारा टाइम कांस्टेंट देते रहोगे. अब जो आप आए हो अभी चले जाओगे, लेकिन मेरे को एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज दे दो. That's what Dhruv Maharaj is telling, and Prabhupada is writing this. From this statement by Dhruv Maharaj, it is clear that unless one is associated with devotees, his devotional service does not mature. वो कच्चा रह जाता है, पक्का हुआ नहीं बनता है बिना एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज में. His devotional service, it does not become distinct from material activities. Towards the last part of the presentation, एक caution. हम डिवोटी हैं, गृहस्थ आश्रम में घुस गए, अच्छे सब चल रही गाड़ी, पर अगर हम बार बार पीछे मुड़ के ना देखें कि हम कहाँ हैं, और अगर हम बार बार रीडिंग हियरिंग अच्छे से ना करें, ऑब्जर्वेशन ना लें, तो ऐसा हो सकता है कि हम बस एक धार्मिक व्यक्ति बन जाए. ऐसा हो सकता है, एक पायस हाउस होल्डर बन जाए. तो गलत है क्या? वो गलत नहीं है, गलत नहीं है. अरे अधार्मिक हाउस होल्डर बने, उससे तो अच्छा धार्मिक हाउस होल्डर बने ना, गलत नहीं है. लेकिन वहीं तक रुकना नहीं है, उससे आगे जाना. No, that devotee also said in the right spirit only, but I am trying to highlight one point, कि धार्मिक हाउस होल्डर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाँ प्रॉब्लम क्या है कि वहीं पर रुकना नहीं है, आगे जाना. तो जब भी आप ISKCON में सुनोगे कि अच्छा सब धर्म का अच्छे से पालन करिए, अच्छे से एक अच्छा हाउस होल्डर बनिए, तो वो गलत है कि सही है? सही है. लेकिन अगर हम वहीं फंस जाए, गाड़ी वहीं अटक जाए, तो गलत हो जाएगा. अगर हम पर्पस को भूल जाएं तो गलत हो जाएगा. तो उस पे ऊपर थोड़ा चर्चा करेंगे. गृहेषु कूट धर्मेषु सक्तो ग्राम्य सुखेच्छया कर्मतंत्रम वितनुते वेदवाद विपन्नधि. Very relevant and very important, especially once we practice for 10 years, 15 years, and then we start, वो Prabhupada book सब simple हो जाता है.
अरे ये सब तो सुना है, कितनी बार सुने, मजा नहीं आ रहा है लेक्चर सुनने में, तो अब कुछ और दूसरा पुराण निकालेंगे, कोई और दूसरे वेद में जाएंगे, ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमको ये समझना है कि वो कहीं गलत रास्ते में ना चला जाए। तो उसके लिए ये श्लोक है, प्रिटेंशियसली रिलीजियस हाउसहोल्डर लाइफ in which one is attracted to material happiness and thus also attracted to the superficial explanation of the Vedas, robs one of all intelligence and attaches one to fruitive activities as all in all. Very important. क्योंकि बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, तो कुछ भी फॉलो ना करें, नहीं ऐसा नहीं बोल रहे हैं, लेकिन उसको फॉलो करने के अब उसमें ही हम पूरा जीवन निकाल दें, ऐसा भी नहीं है। जो हम लोग को जो पता चल जाए और जिसको हम कृष्णा कॉन्शियसनेस के साथ अलाइन कर सकते हैं, वो सब फॉलो करना चाहिए। पर अब अगर कुछ नहीं पता है, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, और या उसको पता करने में बहुत झमेला है, और उसमें भी किसको सही पता किसको नहीं पता मालूम नहीं, तो उसको ठीक है भाई, नो प्रॉब्लम, नाउ कृष्णा विल अंडरस्टैंड। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? So we have to remember what is the goal of life, what is primary, what is secondary. We have to keep the horse before the cart. And that is our great fortune by Prabhupada's mercy that we have got access to the Shastras in a nice way so that the essence is known. Now, at the same time, does it mean we don't want to go into details? No, we want to go into details because both are important. But details में we can always remember कि चलो ठीक है, अभी बहुत ही ज्यादा धनचक्कर है अगर किसी डिटेल में, तो ठीक है, it's okay, we don't have to get too attached to that detail. Just because नहीं यहाँ पर इस वेद में ये लिखा था और ये करना सही है, नहीं, it's not needed. त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुन. If we are understanding संबंध अभिधेय and प्रयोजन, and then it also depends on time, place and circumstances. In general, the state of the society. अब जैसे मान लो इंडिया में बहुत चीजें ऑलरेडी फॉलो होती हैं, तो हम उसको फॉलो करें कि ना करें कृष्णा कॉन्शियसनेस के नाम पर? ये सब तो जरूरी नहीं है, अल्टीमेटली एसेंस कृष्णा कॉन्शियसनेस है, तो करें कि नहीं करें? फॉलो करना चाहिए, क्योंकि अगेंस्ट नहीं है ना कृष्णा कॉन्शियसनेस के। लेकिन मान लो आप कहीं बाहर कहीं अब्रॉड रह रहे हो, अब जैसे मैं बताता हूँ, जैसे पुणे बॉम्बे जैसे जो कम्युनिटीज है जहाँ बहुत जबरदस्त सिस्टम है कम्युनिटीज का, और कॉन्ग्रीगेशन बहुत ही वेल डेवलप्ड है, तो वहां पे आपको ऑयल भी आप चूज कर सकते हो कि मेरे को वो जो लकड़ी में जो बनाया हुआ कोल्ड प्रेस्ड ऑयल होता है ना, वो खाऊंगा तो बेस्ट रहेगा। हेल्थ का मैं वो लिमिट बता रहा हूँ, जहाँ पे आप गाय का दूध भी, आप नॉर्मल गाय का दूध नहीं लेते हो, आप वो वाली गीर देसी गाय का दूध लेते हो, जो खुले खेत में धूप में वो उसको घास करना होता है। ओके, और वो बेस्ट है बाय द वे, प्रॉपर प्रिंसिपल है। जो खुले खेत में धूप में जो गाय चरे, खुशी से अपना घूम फिर के घास चर रही है, और शाम को वापस आ जाए, जिसको गोधूली टाइम इसलिए तो बोलते हैं, शाम को आ जाए। अब उसके बाद उसका जो दूध है, उसका दही जो बनता है, और वो दही को मिट्टी के बर्तन में, और केवल ऐसा एक तरफ घुमा के नहीं, मिक्सी में चला दिया एक तरफ को नहीं, कर्षण घर्षण दोनों ऐसा करके जो मट्ठा बना है, उससे जो घी बनता है, जो भी वो प्रोसेस होता है, वो घी अमृत है। तो अभी आपके पास अगर ऐसा चारों ओर सपोर्ट सिस्टम है जहां ऐसा घी मिल रहा है और आपके पास उतना पैसा है, तो आप ले लीजिए। पर अगर नहीं है, मान लीजिए आप अमेरिका में हैं जहां पे वेज नॉन वेज ही बहुत बड़ी चीज हो गई, तो क्या आपका लाइफ बर्बाद हो गया? नहीं, इसके लिए प्राइमरी और सेकेंडरी समझना जरूरी है। अदरवाइज जितना हम मेहनत इन डिटेल्स को समझने में कर रहे हैं, उतनी मेहनत अगर जैसे राधे श्याम प्रभु भागवतम पढ़ाते हैं वैसा करने में लग जाए, तो लाइफ का बेटर हेल्प हो जाएगी। टाइम तो वही 24 घंटा है, मेहनत लगती है ना हर चीज में। अब हम वो डिटेल समझने में मेहनत लगाएं, टाइम एनर्जी, कि भूख ले बाहर रोड पे जाके भूख डिस्ट्रीब्यूट कर दें, पर ऊपर थोड़ा बैकडोर एंट्री दे देंगे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। हम पूरा अपने आसपास का वातावरण पूरा चेंज करने के लिए, पूरा वैदिक बनाने में हम चले जाएं, जो अगर कर सकते हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि वो कंटेनर है और अच्छा हेल्प करेगा। लेकिन अगर नहीं कर पा रहे हैं, तो अब हम क्या करें? चलो ठीक है भाई, लेट्स गो अहेड एंड लेट्स फोकस ऑन द एसेंस। लेकिन हाँ, वो एसेंस को प्रैक्टिस करने के लिए कंटेनर जरूरत पड़ता है, इसलिए व्हाटएवर एक्सटेंड वी कैन वी शुड, यू सी। तो इसलिए एक प्रेयर मेरे को बहुत अच्छी लगती है, आई रेड इट समवेयर, कहीं तो पढ़ा था मैंने, ओ लॉर्ड गिव मी द करेज टू चेंज दोज थिंग्स व्हिच आई कैन, रिपीट, ओ लॉर्ड गिव मी द करेज टू चेंज दोज थिंग्स व्हिच आई कैन, give me the tolerance to tolerate those things which I can't change, give me the tolerance to tolerate those things which I can't change, and most important, give me the intelligence to discriminate between the two. That is very important, and that comes by mercy, that comes by serving great souls. हर चीज हम खुद से नहीं डिसाइड, कौन है हम, कितना शास्त्र के बारे में पता है हमको, थोड़ा बहुत इधर उधर हम नाम क्या सुन लिए शास्त्र का, हमको लगता है कि हम बहुत बड़े शास्त्र में पारंगत बन सकते हैं, नहीं बन सकते।
हाँ, कोई कोई डिवोटीज को इंटरेस्ट होगा, उनके स्पिरिचुअल मास्टर, उनके सीनियर डिवोटीज उनको ब्लेस करेंगे, आप उसमें आगे बढ़ जाएंगे, उससे आप सेवा करेंगे बाकी गृहस्थों को। हर गृहस्थ को डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई एक डिवोटी पढ़ लेगा, सबको सेमिनार प्रेजेंट कर देगा अलाइंड विद प्रभुपाद टीचिंग्स, सो उस डिवोटी के लिए वो अच्छी सर्विस हो गई, राइट? सो डोंट मिसअंडरस्टैंड मी, आई एम नॉट सेइंग दैट इज रॉन्ग, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज इन जनरल, राइट, our what should be our governing principle, what should be our decision making criteria, right? नहीं तो क्या होगा, हम कुछ कुछ डिटेल्स को लेके फंस जाएंगे और फिर हम उतना इंथुसियास्टिक नहीं हो पाएंगे स्पिरिचुअल लाइफ में जितना हम हो सकते हैं बाय फोकसिंग ऑन द एसेंस। चैंटिंग पे मेहनत करें, भागवतम को, और मैं आपको बताता हूँ प्रभु, चाहे आपने भागवतम पूरी पढ़ भी क्यों ना ली हो, फिर भी भागवतम में इतने ट्रेजर है। जब भी कोई एक एडवांस डिवोटी से भागवतम सुनते हैं, वही वर्ष क्यों ना हो, वही पास टाइम क्यों ना हो, कोई नया चीज पता चल जाता है। मतलब दिस इज अमेजिंग, दिस इज रियली रियली अमेजिंग, रियली अमेजिंग। चाहे बात डेथ और बर्थ की क्यों ना हो, जो जिसका हमने कितना लेक्चर दे दिया डीवाईएस में, बर्थ एंड डेथ फोर बेसिक प्रॉब्लम्स, उसका भी जब हम कोई एडवांस डिवोटी सुनते हैं तो एक नया उसका एस्पेक्ट समझ में आता है, नया रियलाइजेशन आता है, राइट? तो ये सब में ऑलरेडी हमारे पास पैसा कमाना है, रोटी कपड़ा में इतना कुछ है, उसका जो थोड़ा बहुत टाइम बचा उसमें हम पूरा उसको डिटेल को समझने में लगा दें कि हम पहले अपना जो साइंस ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रभुपाद ने प्रेजेंट किया है, पहले उसको अच्छे से समझ लें। प्रभुपाद ने कितने लेटर्स लिखे हैं, कितने लोगों के साथ कितना इंटरेक्शंस किया है, कितनी बुक्स लिखे हैं, हमने थोड़ी पढ़ा है पूरा। और अगर हमको लग रहा है कि हम पढ़ लेंगे तो लेट मी शेयर वन थिंग। एक बार राधेश्याम प्रभु बहुत पहले 20 इयर्स बैक बैंगलोर आए थे, नहीं 20 नहीं 15 कुछ, और वो एक मंदिर में बैठ के लेक्चर दे रहे थे और अपना ही इनर एस्पिरेशन शेयर कर रहे थे हम सबसे। वो बता रहे थे माय एस्पिरेशन इज, राधेश्याम प्रभु बता रहे हैं, माय एस्पिरेशन इज दैट बिफोर आई डाई आई वांट टू रीड एवरी वर्ड दैट प्रभुपाद हैज रिटन and I want to hear every word that Prabhupada has spoken. Now somebody of the caliber of Radheshyam Prabhu is telling this is my aspiration कि before I die, मतलब वो बहुत बड़ा टारगेट होगा, मतलब कितने वर्ड्स होंगे जो प्रभुपाद ने लिखे होंगे और बोले होंगे, right? तो हम अगर वो भी अच्छे से पढ़ के पकड़ लें, प्रभुपाद की धोती अगर पकड़ लें तो हम जो कुछ और नहीं कर पाएंगे इसके चक्कर में, वो हमारा टेक केयर हो जाएगा। We don't have to take the burden on our shoulders to be able to live a very very highly moral life or highly whatever, मतलब जो कर सकते हैं जितना करना चाहिए। Again, it's not that we are against that, but whenever it is like becoming too much or it is coming in the way of my normal practice of Krishna consciousness, which is bare minimum which has been expected, उधर too much हो रहा है, इधर bare minimum में भी कम पड़ रहा है, then we have to understand। और वो तभी होगा जब हम सिंसियर होंगे, जब हमारे अंदर डुप्लिसिटी नहीं होगी, जब हम समझ चुके होंगे चैतन्य महाप्रभु कौन है और क्या देने आए हैं। नहीं तो हमको लगेगा कि अच्छा यही सब का पालन करना ही हम इस्कॉन में सीख रहे हैं और इसलिए ये सब जितना अच्छे से सीख पाए। नहीं, हमको कुछ और दिया है चैतन्य महाप्रभु। That we have to always remember कि क्या दिया, what is Prabhupada writes in one of the prefaces of Chaitanya Charitamrita या भागवतम भूलिया में, it is this unique and highest development of love of God which Chaitanya Mahaprabhu has come to give us. This unique and highest development of love of God, ये छोटी चीज नहीं है। It is not just about being good and being right and being a pious person. ये उससे बहुत ऊपर है। उसको रिजेक्ट नहीं करता है, उसको इंक्लूड करता है, पर उससे बहुत ऊपर लेके जाता है। ये कुछ और ही है, कृष्ण का प्रेम। We have to understand what that is and who is Krishna. हमने थोड़ी पता है हमको who is Krishna. Do we all know who is Krishna? We have given lectures. Krishna is supreme personality of Godhead. उत्कर्ष में, स्फूर्ति में, why Krishna is God, why we worship supreme. ये सब दिया है हमने lectures. पर we actually don't know, don't realize, क्योंकि कर ही नहीं सकते ना, हमारे बुद्धि, हमारे कैपेसिटी में ही नहीं है। सोचो वो आदमी जिसकी वजह से हम सब सांस ले रहे हैं, यही अपने आप में बहुत बड़ी चीज हो गई। बाकी तो और हम ही नहीं है, इतने सारे और लोग हैं मंदिर में और पूरे कृष्ण क्रिएशन में, फिर ये बिच्छू सब है और खाली सांस लेना ही नहीं और भी कुछ हो। बाप रे, कैसे हो रहा है भाई? व्हाट इज दिस पर्सन, हु वुड दिस पर्सन बी? सबका लॉ ऑफ कर्मा चल रहा है, सब सीजन चेंज हो रहे हैं, फ्रूट्स आ रहे हैं। कल ही परसों में देखा था मेरे घर के पास, हमारे घर के पास एक एम्प्टी प्लॉट है। वी हैव एन एम्प्टी प्लॉट नेक्स्ट टू अवर हाउस, किसी और का, हमारा नहीं। तो माय वाइफ लाइक्स प्लांट्स अ लॉट, तो उसने बहुत अच्छे से वहाँ गार्डन बना दिया। माय वाइफ टॉक्स टू प्लांट्स, तो उसने वहाँ गार्डन बना दिया एंड दो दैट गार्डन इज लाइक हर चिल्ड्रन। अभी एक दिन क्या हुआ, पिग आ गया। अभी सोचो क्या किया हमने, भगाने की कोशिश की, भाग गया, पूरा लेआउट में घूमा, वापस आ गया। वो कह रहे हैं हमारे यहाँ रोड्स बन रही हैं, सब रोड्स आर अंडर कंस्ट्रक्शन, तो उसकी वजह से जितने भी एम्प्टी प्लॉट्स थे ना उन सबको क्लीन कर दिया गया है। तो पिग को जैसा कोजी इन्वायरमेंट चाहिए वैसा है नहीं बाकी किसी प्लॉट में, पर हमारे यहाँ क्योंकि गार्डन बना हुआ है और उसके पीछे का एरिया में थोड़ा ऐसा बुशेस वगैरह और थोड़ा ऐसा पेड़ का वो टूटा हुआ टहनी वगैरह ब्रांच वगैरह है, तो पिग को वहाँ अच्छा इन्वायरमेंट मिला था, तो इसलिए आई थी वो। तो अभी
भगाया, because that was a big thing. I mean, garden पूरा खराब हो जाएगा भाई, you know, पूरा, and they are children of my wife actually, you know, and it's good also to have plants around. भगाया, फिर वो, and she went, the pig went out. फिर थोड़ी देर बाद वापस आ गई, अगेन हमने भगाया, एंड शाम हो गई, फिर देखे कि वापस आ गई, और वो क्या कर रही थी ना, कि अलग अलग जगह से, कहीं से कोई मोटी चीज, कहीं से पतली चीज, कहीं से सॉफ्ट चीज, ऐसे ला ला के वहां पर वो हमारे गार्डन में वहां पीछे रख रही थी. एंड देन आई एंड माई वाइफ रियलाइज कि वो प्रेग्नेंट है, एंड शी वांट्स टू डिलीवर बेबीज, और उसके लिए शी इज क्रिएटिंग एन अरेंजमेंट. Then we thought, नहीं, now we don't want to play with nature, अभी खराब करने दो हमारा गार्डन, क्या कर सकते हैं, मतलब it's like we are going against Krishna, because Krishna is inspiring that pig from inside. क्योंकि वो अब तो, now the point I'm trying to make is कि सोचो उस पिग ने कितनी मेहनत की और क्या कृष्ण करवा रहे हैं उनसे. You will not believe कि क्या आर्किटेक्चर का मार्वल, जो एक पिग, लेडी पिग, जा जाके हम देखे, हम लोग थोड़ा आधा घंटा ऑब्जर्व किए, कभी कैसे कैसी चीज ला रही है, और इतना ट्रिप ऐसा, उनका हाथ पैर नहीं अपना लेके कोई ठेला वेला पे और ट्रक पे लोड लाके डाल नहीं दिया, जाके मुंह में लेके ऐसे ला ला के. दैट नाइट शी वाज प्रेग्नेंट, एंड अगले दिन सुबह वी सॉ दैट शी गिव बर्थ टू बेबीज. मतलब अर्जेंसी था वो, और उस अर्जेंसी में जा जाके कभी कोई प्लास्टिक, कोई लकड़ी, कोई ये, और यहाँ पर क्या बना दिया, 2-3 फ्लोर का हाउस बना दिया उसने. मैं खुद आंख से देखा बता रहा हूँ. और उसमें ऊपर ऐसा जैसा होता है ना, सॉफ्ट घास का एक ऐसा बिचाली जैसा, ऐसा एक कुशन जैसा बना दिया, और उसके अंदर चली गई. मतलब उसमें ऐसा थोड़ा हल्का सा गड्ढा बना के, थोड़ा ऐसा हार्ड सॉफ्ट चीज, उसके अंदर जाके वो पूरा ऐसा, और ऊपर सब कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन शी इज देयर इनसाइड, शी डिलीवर्ड द बेबीज व्हिच वी सॉ नेक्स्ट मॉर्निंग. तो कृष्णा वो भी कर रहे हैं. मतलब अल्टीमेटली हाउ इज दैट पिग गेटिंग दिस इंटे, हम नहीं बना पाएंगे वैसा घर, जा जाके चुन चुन के लाके, बट दैट एनिमल इज डूइंग. Who is inspiring? Who is helping that animal? एक बच्चर का बच्चा, लिजर्ड का बच्चा पैदा होता है, खाना खा लेता है, उसको पता है क्या खाना है क्या नहीं खाना है, राइट? Who is doing all that? और ये वो, हम जिस कृष्णा की बात कर रहे हैं वो कृष्णा है. मतलब कौन होंगे वो? इसलिए जब हम पढ़ते हैं कि ब्रह्मा भी नहीं समझ सकते, वो फैक्ट है, मतलब वो तो, ये भी कुछ नहीं है, मतलब कितना भी बड़ा ले लो वो भी नहीं समझ सकता, क्योंकि कृष्णा उससे भी बहुत बड़े हैं, और यही लिखा रहता है भागवतम में. तो हम लोग एक्चुअली नहीं समझ सकते कृष्णा कौन है, और वो सच में हु इज कृष्णा, एंड वी डोंट रियलाइज दैट ही इज एग्जिस्टिंग. हमको पता ही नहीं है. नहीं तो हम जब चैंटिंग करके जब बोल रहे होते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, तो हम, मेरे जैसा नालायक फिर भी चैंटिंग में ध्यान, मतलब हमको पता ही नहीं ना कृष्णा कौन है. और ऐसे कृष्णा का हम लव ले सकते हैं, ऐसे कृष्णा हमारे फ्रेंड बन सकते हैं, भक्तवत्सल पार्थ सारथी. मतलब हम क्या बात कर रहे हैं यहाँ पर, व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट, व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट, क्या गोल है ये हमारा, और क्या हमको चैतन्य महाप्रभु से मिला है. कैवल्यम नरकायते त्रिदशपुर आकाश पुष्पायते, दुर्दान्तेन्द्रिय काल सर्प पतली प्रोत्खादम त्रायते, विश्वम पूर्ण सुखायते विधि महेन्द्रादिश्च कीटायते, यत्कारुण्य कटाक्ष वैभवतम तम गौर एवस्तु हम. When Chaitanya Mahaprabhu's mercy we get 5 things happen. Kaivalyam narakayate, मतलब to merge in Brahman is like narak. That kind of mukti is like narak. Kaivalyam, that becomes narak, because now you have understood what is positive. Zero no longer attracts you because you have understood positive, right? Kaivalyam narakayate. जब चैतन्य महाप्रभु की कृपा पड़ती है तो कैवल्यम नरकायते. दूसरा केवल त्रिदशपुर आकाश पुष्पायते. Any place in this entire creation is just some flowers in the sky. It has no more meaning than that for us, because we have understood Golok Vrindavan. Tridashapura Akasha Pushpayate. Durdantendriya Kala Sarpapatali Protkhat Damstrayate. Those senses which are so difficult to control, they are like snakes, poisonous snakes. Our senses are like poisonous snakes. When we get mercy of Chaitanya Mahaprabhu, they become like, उसका दांत पॉइजनस निकाल दिया जाता है और फिर वो टॉय बन जाता है बच्चे के लिए, वो खेल रहा है, गले में लगा रहा है. हम लोग एक बार कैंप में गए थे पिकनिक में, आई एंड माय काउंसलिंग ग्रुप, अमरीश वी वर देयर, रिमेंबर? तो यू नो एक सपेरा आया था उधर, हमने बोला आ जाओ जाओ जाओ, तो वो हम लोग को बोल रहा था लीजिए आप इसको गले में डालिए. मेरा तो हिम्मत नहीं, हमने डाला, बट वी हैड सम डिवोटीज, यू आल्सो डिड, वी हैव सम ब्रेव डिवोटीज, तो वो लोग लेके गले में डाल दिए थे अपना, बिकॉज़ क्यों, पॉइजन नहीं है उसके अंदर, तो प्ले थिंग है, टॉय है. दुर्दांत इंद्र काल सर्पपतली प्रोत्खास दंष्ट्रायते, विश्वम पूर्ण सुखायते. और क्या होगी तीसरी चीज, होल वर्ल्ड विल बिकम ब्यूटीफुल because we will become Krishna conscious. Vishwam Purna Sukhayate, Vidhi Mahendradish कीटायते. Brahma, Shiv, such people will become insects. Not to disrespect, but to mean that now we have understood these are not all in all. They are also insignificant servant of Krishna. Vidhi Mahendradish कीटायते.
Yat karunya kataksha vaibhavatam tam gaure vastuham. When Lord Chaitanya Mahaprabhu's karunya kataksh falls, these 5 things happen. Right? So Chaitanya Mahaprabhu's mercy, so our movement is not any other spiritual movement. हम क्या दे रहे हैं भाई, आपको थोड़ा आध्यात्मिक प्रगति दे रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं समझना है. ISKCON अलग है. हम चैतन्य महाप्रभु के बोट में बैठे हैं. चैतन्य महाप्रभु का मिशन एक ऑर्डिनरी स्पिरिचुअल मूवमेंट नहीं है. इट्स नॉट एन ऑर्डिनरी मूवमेंट टू क्रिएट अ गुड pious life. That is included. We have to do that, but it takes us very very high it takes. और वो अगर हम मिस्टेक से नहीं समझ पाए तो बहुत बड़ा मिसफॉर्चून होगा. It's not yet any other संप्रदाय. It's not any other संप्रदाय. It is different. It is special. वो बचपन में मैगी का ऐड आता था ना, सॉस का, शायद टोमेटो केचप. It's different. आप लोग इस समय था कि नहीं था? जावेद जाफरी आता था उसमें. It's different. मैगी टोमेटो केचप. So this is different. It's not yet under. हम लोग खाली स्पिरिचुअल प्रोग्रेस नहीं कर रहे हैं यहाँ बैठ के. कुछ और है ये. चैतन्य महाप्रभु's mercy. So we have to be careful of that. So nothing wrong in living a happy pious life. In fact, as Grihasthas, it is our duty to do our occupational duties and other dharmas well and follow the principles of Varna and Ashram. So I'm not against that, please note. But it is easy to fall prey to Sukham and Jnanam, mode of goodness. And Tamoguna ka kya hai characteristics? Alasa, Nidra, Pramad. Rajoguna ka Sang and Trishna. Sattva ka Sukham Jnanam. So Sukham Jnanam में ना कहीं फंस जाए. Alert to have checks and balances. मेरा साधना ठीक चल रहा है क्या, मेरा स्वाध्याय ठीक चल रहा है क्या, सेवा कर रहा हूँ क्या, संग हो रहा है क्या. हम अपने आप से क्वेश्चन पूछना है. If I am happy, why am I happy? बताओ. मतलब कितना क्वेश्चन हम अपने आप से पूछेंगे. पर इसको लिस्ट में ये भी डालिए. अगर इसी लाइफ में बैक टू गॉड जाना है, अगर एक प्रोग्रेसिव डिवोटी बनना है, हमें कैसा डिवोटी बनना है, तो अपने आप से क्वेश्चन पूछना ही पड़ेगा. और बहुत सारे क्वेश्चन की लिस्ट में एक लिस्ट क्या ऐड हो गई क्वेश्चन की. हैप्पी हूं मैं, क्यों हूं? क्या इसलिए हैप्पी हूं क्योंकि आज अच्छा खाने को मिला, सोने को मिला, साफ बढ़िया चल रहा, पंखा भी चल रहा है, बिजली भी नहीं गई है, एक अच्छी वाइफ है, 2 अच्छे बच्चे हैं, कहना मानते हैं, अब बोला तो चुप हो जाते हैं. अच्छी जॉब मिल गई है, सैलरी भी ठीक हो गई है, अभी मैं हैप्पी हूँ. ऐसे हैप्पी को शास्त्र क्या बताता है? इल्यूजरी. तो अपने आप से ये भी पूछना है कि हम हैप्पी हैं तो क्यों हैं, या क्योंकि ये जो है आज है, कल नहीं होगा. तो इसलिए हम हैप्पी हैं कि चैंटिंग, भागवतम, शास्त्रास, डिवोटीज, कैंप, मंदिर जाना है संडे को, यस, भगवान के सामने आरती करेंगे, नाचेंगे, गाएंगे. Am I becoming happy because of that? We have to ask ourselves. There is nothing wrong in being happy there. अब 6 चीज हो रहा है तो हैप्पी होंगे ना, थोड़े रोएंगे, सैलरी बढ़ गया है ब्रो. ऐसा थोड़ी करना है, ये नहीं बोल रहा हूं मैं. See again, everything is misunderstood. फिर devotees fight. Then there are school of thoughts within ISKCON also. You have to understand the essence, which reconciles both. That is maturity, which reconciles extreme understandings, balance. तो वो अच्छा है happiness. पर अब उसी का हम पीछे पड़ गए, या उसी को वजह से हम सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन आ रहा है तो गलत है. हमारा सेटिस्फेक्शन आना चाहिए कृष्णा से कनेक्टेड होने में. So KC is not just about good intentions, it is about setting our priorities right. We want to be in goodness. Let's not misunderstand कि नए goodness से क्या होगा, जो मन करो, सब नियम तोड़ो, सब कुछ करो, क्योंकि चैंटिंग is the only thing. वो भी गलत है. पति पत्नी में झगड़ा हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, डाइवोर्स तक बात चल रही है, और डिवोटी बोल रहा है प्लीज चैंट, दैट विल सॉल्व ऑल योर प्रॉब्लम. नहीं करेगा सॉल्व नहीं. उसे क्या पता डाइवोर्स चैंटिंग की वजह से ही हो रहा है. क्यों? तो वो दिन भर चैंटिंग करता रहता है, वो जो बोल रही है सुन नहीं रहा है. तब क्या चैंटिंग? पत्नी बोलेगी प्रभु जी यू डोंट नो, बिकॉज ऑफ चैंटिंग ओनली नाउ वी आर टेकिंग डाइवोर्स, राइट. तो इसलिए एट द सेम टाइम, इज दैट रॉन्ग? तो एक बार राधानंद महाराज से किसी ने पूछा था कि महाराज इज चैंटिंग, वो किसने पूछा था मैं नाम नहीं बोलूंगा, लेकिन यही था कि महाराज, some people say chanting is a solution to all problems. At the same time, some people say that no, if there is a material problem, there has to be material solution. So do we have spiritual solution to material problems, or is material solutions to material problems? So there are these, because when we get more knowledge, then there are more questions. So hota hai, right? And there are these different understandings, and sometimes some senior devotees on our behalf, they ask some questions so that things become clear to everyone. So Prabhuji ने पूछा ऐसा, you know, are there material solutions to material problems or spiritual solutions to material problems? आप क्या बोलते हो? Let's take a vote.
अच्छा, हाउ मेनी ऑफ यू से कि मटेरियल प्रॉब्लम है तो उसको मटेरियली सॉल्व करना। मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ, नहीं तो थ्योरी वाइज तो आपको सीधे सीधे पता चलेगा एक सही एक गलत, ऐसा नहीं है, सब बड़े बड़े डिवोटीज इन्वॉल्व है। तो मैं एग्जांपल बताता हूँ। अब मेरे घुटने में दर्द हो रहा है, मटेरियल प्रॉब्लम और स्पिरिचुअल प्रॉब्लम, चैंटिंग करके ठीक हो जाएगा? क्या करना पड़ेगा? तो मटेरियल प्रॉब्लम का कौन सा सोल्यूशन हुआ? तो ये बेबुनियादी बात नहीं है, इतना आसानी से डिस्कस मत करिए। जिस तरह मायावाद, हमको क्या लगता है कि मायावादी लोग को समझ में नहीं आता क्या इतना सिंपल चीज। बोलते कृष्ण का फॉर्म नहीं है। कोई एक असली मायावादी स्कॉलर टाइप का मायावादी से टक्कर हो गए ना, तो चैतन्य महाप्रभु के अलावा और किसी के बस में नहीं था उनको कन्वर्ट करना। अद्वैत आचार्य को भी रो चैतन्य महाप्रभु बोला नोबडी एल्स ओनली यू कैन कम देन ओनली इट विल हैपन। तो हम क्या ऐसे लोगों से मिले नहीं है, इसलिए हमको लगता है हमारा फिलोसफी तो इतना क्लियर है, इतना सिंपल है, वाई देयर आर मिसअंडरस्टैंडिंग। ऐसा नहीं है। जब हम एडवांस लोगों से मिलेंगे ना तब पता चलेगा, हाँ बात तो ठीक बोल रहे हैं, ये बात ठीक बोल रहे हैं, ये बात ठीक बोला, अभी क्या कर देगा। इसीलिए उससे भी एडवांस डिवोटीज का शेल्टर अपने पास होना चाहिए, तभी तो रिकंसाइल होगा ना। दो एडवांस डिवोटी कुछ बोल रहे हैं अगर, तो फिर उससे भी एडवांस डिवोटी से पूछना पड़ेगा क्या है। तो ऐसे ही कुछ यहाँ हुआ था। तो ये है। लेकिन भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने बोला है कि चैंटिंग का सॉल्यूशन ऑल प्रॉब्लम, हमको पता है फिलोसफी वाइज सॉल्यूशन ऑल प्रॉब्लम तो कैसे होगा। तो महाराज ने क्या बोला, ऐसे ही शुरू किया। भक्ति सिद्धांत ठाकुर सेज दैट चैंटिंग इज द सॉल्यूशन टू ऑल प्रॉब्लम्स, बट देयर आर एड्स व्हिच वी कैन टेक, to help in that solution. Ultimately, that is the solution, chanting. And ultimately, it will solve all our problems by making us advanced. But till the time that is happening, there are some other material aids which can be taken and used in the service of that primary solution. And that is also fine. So you see, reconcile हो गया ना वापस। ऐसा नहीं कि नहीं ये सही बोला वो गलत वो सही, नहीं, reconcile. That is Krishna consciousness. And that requires maturity, that requires guidance. So we want to be in goodness, but only to rise to pure goodness, not to remain stuck in goodness. नहीं तो डिबेट क्या हो जाएगा, गुडनेस चाहिए कि नहीं चाहिए भक्ति के लिए? आंसर क्या है? नहीं चाहिए भक्ति के लिए, गुडनेस नहीं चाहिए, ट्रांसेंडेंटल। भक्ति डज नॉट डिपेंड ऑन गुडनेस। लेकिन ये भी फैक्ट है कि गुडनेस इज अ गुड प्लेटफॉर्म टू बी एबल टू राइज टू भक्ति, राइट? सो यू सी इट हैज टू बी अलाइन। तो इसलिए ये सब नॉर्मल एक कोर्स है और दूसरा एक इमरजेंसी अलग होता है। तो नॉर्मल में वी हैव टू फॉलो एवरीथिंग नाइसली कि सब गुडनेस का हम काम करें, सब कुछ करें। लेकिन जब इमरजेंसी आ गया और डिसीजन लेना है तो फिर समझने आना चाहिए व्हाट इज हायर प्रिंसिपल, व्हाट इज लोअर प्रिंसिपल। दैट इज द पॉइंट। So therefore, what was the previous slide? Ki pious householder versus devotee householder. What is that one thing which makes the difference? Active remembrance of Krishna. That is that one thing which makes the difference. Active remembrance of Krishna. And how will we get the active? Because we have to remember Krishna at the time of death, right? At a bare minimum. As such, that's not the only goal. We have to just serve Krishna favorably, whether we go to spiritual world or not. But we understand at our level, this is the ultimate goal of life, to remember Krishna at the time of death. So remembering Krishna is what makes a devotee different from any other person who may be so-called Sukham Jnanam and everything. How will you get remembrance of Krishna? Remembrance comes by attachment. जिसके प्रति अटैचमेंट होगा उसी का रिमेम्बरेंस होगा। अटैचमेंट कैसे आएगा? एब्जॉर्प्शन। जिसमें एब्जॉर्प्शन होगा, जिसके बारे में हम सारा टाइम सोचते रहेंगे, तो विषयान पुंसा संगस्तेषु भज, जिसके बारे में हम सोचते रहेंगे उसी से अटैचमेंट होगा। अब सोचेंगे किसके बारे में? जिसके प्रति अट्रैक्टेड होगे उसके बारे में सोचोगे, करेक्ट? आप अपने बच्चे से अट्रैक्टेड होगे तो बच्चे के बारे में सोचोगे, जो गलत नहीं है। अपने बच्चे से अट्रैक्ट होना उसके बारे में सोचना गलत है क्या? अपनी पत्नी के बारे में सोचना, उससे अट्रैक्ट होना गलत है क्या? एक बार एक डिवोटी बोल रहे थे कि अगर अपनी पत्नी से अट्रैक्ट नहीं होगे तो दूसरे की पत्नी से अट्रैक्टेड हो, इसलिए आप अपनी पत्नी से अट्रैक्टेड रहो। तो वापस रिकंसाइल। बात ये नहीं कि ये कि कृष्णा, अरे अब हम लोग बात सीधे कृष्णा वर्सेस क्यों कर देते हैं कुछ भी? कृष्णा एंड दिस भी तो कर सकते हैं, वर्सेस कर देंगे तो फिर तो डिबेट हो जाएगा। अलाइनमेंट इंक्लूड, देखो मैं हमेशा बोलता हूँ कृष्णा कॉन्शियसनेस इंक्लूड्स एंड सरपासेस दीस थिंग्स। सो अट्रैक्शन होगा तभी तो एब्जॉर्प्शन होगा। अब अट्रैक्शन कब होगा? जब हियरिंग करेंगे, एसोसिएशन लेंगे, तभी तो अट्रैक्शन। कितना बढ़िया है, राजेश प्रभु ने बताया था। बट राजेश प्रभु इज वेरी, आई रियली लाइक हिम द वे ही मेक्स थिंग्स सो रिलेवेंट टू अस, really amazing. And many other wonderful devotees, so we should have a list of some devotees in our life whom we should hear regularly, जिनके साथ हम रेजोनेट करते हैं। हम सबका एक लेवल ऑफ थिंकिंग है, एक इंटेलेक्चुअल एबिलिटी जो भी हो, अलग अलग डिवोटीज का अलग अलग स्टाइल होता है, और ऑफ ऑल डिफरेंट स्पिरिचुअल मास्टर्स आल्सो। तो हमको हमारे अंदर एक होना चाहिए कि हम किससे इंस्पिरेशन लेते हैं। ऐसे 2-3 लोग का हमको रेगुलरली सुनना चाहिए, जिससे हम अपनी याद ताजा करते रहें। और मैं आपको इतना बता देता हूँ, कभी बोरिंग नहीं होगा। कह रहे इसका तो इतना लेक्चर सुन लिया, अब क्या, अगला लेक्चर सुनो, कुछ आ जाएगा।
गारंटी, गारंटी, चाहे आपने वही पास टाइम उसी डिवोटी से कितना भी कहोगे, वो भी तो अपने प्रोग्रेसिव जर्नी पर आगे जा रहा है, वो भी तो न जाने कितनों का सुन रहा है और उसमें रियलाइजेशन डाल के बता रहा है। मतलब अमेजिंग है, मतलब हमको क्या मिला है। कैन यू इमेजिन एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन विद सच काइंड ऑफ थिंग्स व्हिच वी आर गेटिंग? भक्ति ही नहीं, बाकी जो पैरामीटर, बाकी चीजें, हेल्थ, रिलेशनशिप, पेरेंटिंग, इन सब को लेकर भी कितने अजीब अजीब इंट्रिकेट टाइप की चीजें हम लोग को पता चलती है। मतलब दिस जस्ट माइंड ब्लोइंग, जस्ट माइंड ब्लोइंग। अब कमी है बस किसकी? हम की, कि ये लेकर हम आगे बढ़े, राइट। तो इसका जैसे कुछ, अब जैसे दिस श्लोक है, राइट, सताम प्रसंगान मम वीर संविदो भवन्ति हृत्कर्ण रसायना कथा तज्जोषनादश्वपवर्ग वर्तमनि श्रद्धा रतिर भक्तिर अनुक्रमिष्यति। In the association of pure devotees, discussion of the pastimes and activities of the Supreme Personality of Godhead is very pleasing and satisfying to the ear and heart. By cultivating such knowledge, one gradually becomes advanced on the path of liberation, and thereafter he is freed and his attraction becomes fixed. Then real devotion and devotional service begins. So when we discuss Krishna Katha in association of devotees, we get attraction, and from attraction we get absorption, from absorption we get attachment, and from attachment we get remembrance. See how things begin from hearing and association. So important. And actually we will get taste more and more and more and more, more and more. Ashrama Prabhu was giving an example कि जैसे छोटा बच्चा जो होता है, जो ब्रेस्ट फीडिंग करता है या वो सेरेलैक और वो सब जो खाता है, उसके बाद जब उसको प्रॉपर खाना खाने का समय आता है तो छोटे बच्चे नॉर्मली जो नॉर्मल रोटी दाल राइस दाल सब्जी चपाती है उसे दूर भागते हैं। मैगी चाहिए, पिज्जा चाहिए, वो सब चाहिए, उससे दूर भागते हैं, लेकिन उसके नरिशमेंट के लिए वो बहुत जरूरी है। सिमिलरली जब हम न्यू होते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस में, तो बहुत बार भागवतम क्लासेस में हो सकता है नींद आए, ये थोड़ा बोरिंग लगे, but लेकिन when we get real advancement in Krishna consciousness, when somebody is speaking about Krishna, immediately we feel like, hey, let me hear what is being spoken about Krishna, even though we may have heard. हम लोग उस प्लेटफॉर्म पे शायद नहीं है, हम लोग को थोड़ा एक मसालेदार स्पीकर लगता है, थोड़ा पॉइंट्स लगते हैं, that's our reality, which is also fine. Success in spiritual life is not to do the best, it is in doing our best. उसी के स्थिति हमारा धीरे धीरे हो जाएगा, धीरे हो जाएगा। लेकिन असली टेस्ट वो होता है कि कोई अगर pastime है सुन रहा है, जैसे चैतन्य महाप्रभु heard which pastime, I think प्रहलाद महाराज pastime from Gadadhar Pandit hundreds times it said, right? तो that is, और वो टेस्ट ना फिर उसमें फिर भागवतम में कोई सोएगा नहीं, जैसे खाना खाते समय नहीं सोते हैं, किसी को मैं नहीं देखा नहीं प्रसादम कर रहे। Once I think Krishnanand Prabhu was telling them, मैं सच में विजुलाइज किया, मैं बात सही है, प्रसादम के समय नींद आ जैसा कभी नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि हम एक्टिव है सभी एकदम, सेंसेस, राइट। और भागवतम में तो नींद आ जाती कभी कभी, स्पेशली जब कुछ नया नहीं हो रहा हो या कुछ कोई धमाकेदार स्पीकर नहीं हो, बहुत ही सत्वगुण का स्पीकर हो। जैसे एग्जांपल, इसका ग्राफिक एग्जांपल है, और सच में एक पॉजिटिव अट्रैक्शन डेवलप होता है कृष्णा के प्रति। जब हम सुनते हैं कि पूतना आई मारने के लिए, और कृष्णा ने उनको अपना मदर का रोल दे दिया स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, क्या कृष्णा है, तो एक प्रेम डेवलप होता है, अट्रैक्शन डेवलप होता है। जब हम सुनते हैं कि कृष्णा अर्जुन का ड्राइवर बन गए, एक प्रेम डेवलप होता है। जब हम सुनते हैं कि कृष्णा मक्खन चुराते हैं, और अगर हमारा हृदय भी, if our hearts also become like butter, soft and white, white for purity, softness for compassion, when our heart also becomes like that butter, Krishna will see it and बड़े मजे से खाएंगे, तो एक अट्रैक्शन डेवलप होता है। When we hear कि कैसे लॉर्ड राम, सीता, लक्ष्मण जब वनवास में जा रहे थे, तो नंगे पैर थे, तो कांटे लगे थे राम के चरणों में, लक्ष्मण आगे जाके बोला निकालता हूँ, लक्ष्मण बोले नहीं निकालो, बार बार आगे जा रहे हैं, निकालता हूँ, नहीं निकालो, रहने दो। तो लक्ष्मण बोला बहुत हो रहा है, अति कर रहे हैं, मेरे से सहा नहीं जा रहे हैं, इनके पैर में खून निकल रहा है, कांटे लग रहे हैं। तो एस्केलेट किया प्रॉब्लम को, मैनेजर के पास गए, सीता मैया के पास गए, बोले क्या कर रहे, देखो मैं निकालने नहीं दे रहे। तो सीता मैया बोली क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं निकालने दे रहे? तो बोलते हैं कि मैंने भाव लिया है कि जो मेरे लोटस फीट का शेल्टर लेगा उसको छोड़ूंगा नहीं। These thorns have taken shelter of my lotus feet, how can I give them away? तो हम देखते हैं कि इस तरह का विचार रखते हैं भगवान, तो अट्रैक्शन डेवलप होता है, अट्रैक्शन डेवलप होता है। और ऑलरेडी इतना कुछ कर, जैसे वो पिग का मैंने एग्जांपल दिया, अब उस पिग को हमको बताना चाहिए कि नहीं, देखो कृष्णा क्या कर रहे हैं तुम्हारे लिए, तुमको पता भी चला, तो चलो उसको नहीं पता, अब तो हम बता सकते हैं अपने आप को, हम जब पिग थे तो ऐसा किया था भगवान ने हमारे साथ, है ना पिग? किसी को डाउट जरूर होंगे अब, राइट। तो अब तो पिग को देख के समझ सकते हैं ना क्या किया होगा भगवान ने हमारे साथ, कितना हमारी हेल्प की है, कितना मदद किया है, क्या किया है,
When we are one in the stool, then also he is with us. Therefore, Prabhupada used to say, so many lives we have given to our mind and senses. This one life, let's give to Krishna. मैं बोल रहा हूँ, मैंने भी दिया नहीं है कृष्णा को, बोल रहा हूँ, और ऐसे ही एक दूसरे को बोल के रिमाइंड करके, मैं भूल जाऊँ आप याद दिलाओ, आप भूल जाओ मैं याद दिलाऊं, ऐसे ही करके हमको भक्ति करनी है. गाड़ी गड्ढे में फंसेगी, धक्का मारने वाले लोग होने चाहिए आसपास. दैट इज एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज. हमारा प्रॉब्लम ये नहीं कि गाड़ी हमारी खटारा गाड़ी है या गड्ढे में फंस रही हो, तो हम सबकी खटारा ही गाड़ी है, ऐसे ही चलती है फुट करके या गड्ढे में बार बार फंस रही है, तो उधर कोई प्रॉब्लम नहीं, दैट्स ऑल फाइन. अरे कृष्णा के लिए सब बड़ी प्रॉब्लम है क्या? व्हाट डू यू थिंक? हमारा कितना भी प्रॉब्लम रहने दो, हमको ही पता है कितना प्रॉब्लम है हमारा, तो कृष्णा के लिए बड़ा है क्या कुछ? तो कृष्णा पे फोकस, एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज इज सो इम्पोर्टेंट. So that is purpose of Grihastha Ashram and so many other मैं डॉट इसलिए डाला है क्योंकि हरि अनंत और डॉट नहीं डाल पाया मैं, लेकिन थोड़ा 4-5 डॉट इज सिग्निफाइंग अनंत. There is no restriction. I think last 2-3 slides है. कितना बच गया? 12:38. Okay, we are doing on time. First time in my life. But you never know क्या चलता है, देखते हैं. There is no restriction against living with a wife and children, but life should be so conducted that one may not go against the principles of religion, economic development, regulated sense enjoyment, and ultimately liberation from material existence. It is understood. मतलब it is our responsibility कि हमसे, क्योंकि जब हम spiritually enlightened होते हैं ना, जब जोश में होते हैं ना, तो उस समय अपने को कुछ ऐसे सिस्टम सेट कर देने चाहिए जिससे कि जब हम जोश में ना भी हो तब भी हम कुछ गलत ना कर पाए. Are you getting what I am trying to say? हर समय हमारा स्पिरिचुअल लेवल एक नहीं रहता है, हमारा ऐसा घना तरल टाइप का, हमारा अप्स एंड डाउन साइनसोइडल वेव चलता है. कैंप में आते हैं एकदम सर चार्ज हो जाते हैं, तो उस समय कुछ रिजोल्यूशंस ले लेने चाहिए, उस समय कुछ डिसीजंस ले लेने चाहिए जिस हिसाब से हम वो करें. अगर हंसों के लिए क्या, अपने पत्नी और बच्चों से शेयर करने चाहिए रेजोल्यूशन, जिससे कि हमारा कोई प्राइवेट लाइफ रहे ना. बच्चों को बढ़िया से कृष्णा के बारे में बड़ी बड़ी बातें बतानी चाहिए, क्योंकि कल को आप नहीं करोगे तो बच्चा बोलेगा पापा कल तो आप ये बोल रहे थे. मैं अपना बता रहा हूँ ना, मेरा बच्चा भोग लगाता है, बोलता हूँ ऐसे नहीं कि सीधे जाके ऑल्टर छू दिए, पहले घंटी आचमन करो, घंटी बजाओ, दंडवत करके तब ऑल्टर खोलो. अब एक दिन मैं जब कर रहा था तो कुछ हड़बड़ी होगी, तो मैं करने लगा था, लेकिन तो एक मिनट ही बैठा है इधर तो किए. यू सी, सो यू कैन क्रिएट सिचुएशन. Life should be so conducted that one may not go against the principles of religion, economic development, or dharma, moksha, whatever. मैं छोटे एक अलग एग्जांपल दे रहा हूँ, but the principle I'm trying to, so that's how you can use your family members in service of Krishna as your checks and balances also. And therefore ऐसा मत करो, नहीं मैं बताऊंगा ही नहीं उसको भगवद्गीता और भागवतम के बारे में. क्यों? जितना बताऊंगा उतना ज्यादा पता चलेगा, उतना मेरे अंदर एक प्रॉब्लम निकालेगा. वो तो एक कल्चर है, रेस्पेक्ट करके आपके अंदर प्रॉब्लम नहीं निकालेगा, लेकिन that will help you. जैसे हम बोलते हैं ना, one of the reasons why we wear Vaishnav dress is to remind ourselves. जैसे पुलिस ऑफिसर का हम एग्जांपल लेते हैं संकल्प में, why we do, इसके लिए नए नए कोर्सेज देते रहने चाहिए. हमको हो गया 4-5 साल कृष्णा कॉन्शियसनेस में, लेकिन आप डीवाईएस दीजिए, संकल्प कैंप दीजिए, जाइए, जिससे कि वो सब चीजें बार बार आपको याद होती रहे. बोलो ही ना मत कभी ना. एक बार राधेश्याम प्रभु आईआईटी बॉम्बे में जब पीएचडी कर रहा था मैं, तो वहां पे वॉइस में आए थे, मैं पीछे बैठ के सुन रहा था, वो लेक्चर दे रहे थे यूथ को. मैंने बाद में प्रभु जी को बोला, प्रभु जी 20 years back when I used to hear you, you were giving class exactly with the same enthusiasm, same vigor, even though it is just some शुरू का some device classes kind of classes, and people like us sometimes will अरे क्या है device, कुछ मसालेदार बोलने को नहीं है, कुछ बढ़िया से भागवतम का श्लोका बोलते तो मजा आता, भाई सेम चीज बोलना. प्रभु जी बोले कि for that matter if I have to give millions of times device I will give that. So that is the compassion and that's the desire to spread the message of Krishna consciousness, that you don't want to speak what you relish, you want to speak what is important for the audience. Another sign of advancement. But anyway, so मैं वहां कैसे चला गया, राधेश्याम प्रभु कैसे ले आया बीच में. Anyway, so life should be so conducted. तो ये एजेंट्स हम बना सकते हैं अपने घर के अंदर ही, सीक्रेट एजेंट, क्योंकि माया के एजेंट के साथ तो हम सारा टाइम रहते हैं माइंड के साथ, तो डिवोटी एजेंट भी बना लो ना अपने घर में, थोड़ा 2-4, और उनको पूरा ट्रेनिंग दो, ट्रेनिंग में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहिए, जिससे कि उसकी वजह से हम भी जो है गड़बड़ ना करें. उनको सही शिक्षा देंगे, उनकी वजह से फिर हम भी कम से कम दिखावे के लिए फॉलो करेंगे, दिखाते 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 आदत हो जाएगी. प्रीचिंग ऐसे ही तो हुआ ना, हम सब व्हेन वी स्टार्ट प्रीचिंग 3rd ईयर में फैसिलिटेटर बनते हैं, वो सब होता है, फिर हम जो हमारे जो सीनियर डिवोटीज आते हैं उनको हम फॉलो करने की कोशिश करते हैं, उनको इमिटेट करने की कोशिश करते हैं, धीरे धीरे वैसे बन जाते हैं, वैसे हमारा नेचर बन जाता है. अच्छा ही है, अच्छी चीज तो कहीं से भी ले ले. इट इज अंडरस्टूड दैट एम्परर स्वयंभुवा मनु enjoyed his household life. कोई कमी नहीं एंजॉयमेंट में, चिंता नहीं.
enjoy the household life by following these principles. It is stated here that early in the morning there were musicians who used to sing with musical instruments about the glories of the Lord, and the emperor with his family personally used to hear about the pastimes of the Supreme Person. The sleeping members of the house gradually get up from their beds in a pleasing atmosphere. During bedtime also the singer sings songs in relationship with the pastimes of the Lord. In every house, in addition to the singing program, there is an arrangement for Bhagavatam lectures in the evening. Family members sit down, hold Hare Krishna Kirtan, hear narrations from Bhagavatam and Bhagavad Gita, enjoy music before going to bed. The atmosphere created by this Sankirtan movement lives in their hearts, and while sleeping, they also dream of the singing and glorification of the Lord. In such a way, perfection of Krishna consciousness can be attained. क्या प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है? शाम को सोने से पहले शयन कीर्तन में कितना टाइम लगता है? 5 मिनट लगता है. चलो आधा घंटा नहीं कर सकते, 10 मिनट करेंगे, 5 मिनट करेंगे, और नहीं कर पाओगे आप आधा घंटा जब बहुत बिजी हो जाओगे तो. लेकिन वो ये जो कल्चर है, ये छोटी छोटी बातों में छुपा है कृष्णा कॉन्शियसनेस. कहाँ छुपा है कृष्णा कॉन्शियसनेस? छोटी छोटी बातों में. तो ऐसा करेंगे तो, और अपने आप को रिमाइंड करते रहना है. दैट इज द परफेक्शन. अल्टीमेटली चाहते हैं ना परफेक्शन, तो चाहते तो करेंगे. अगर उसको हम इग्नोर कर रहे हैं धीरे धीरे, मतलब नहीं चाहते, तो इतना सिंपल है. तो समटाइम्स आई आस्क माई सेल्फ कि व्हाई समटाइम्स वी डोंट फॉलो सम सिंपल प्रिंसिपल्स. मतलब क्या हमको गोल नहीं चाहिए क्या? नहीं चाहिए तो सीधे बोलो, क्यों इतना टाइम वेस्ट करने. मतलब फिर ये रियलाइज होता है कि बताओ माइंड कितना ये है, मतलब हमको कितना डिजीज है. हाउ मच वी आर डिजीज्ड वी रियलाइज समटाइम्स कि इतना कन्विंस होने के बाद भी, ये सब चीजें करने के बाद भी बहुत बार मन करता है छोड़ो यार क्या, यू नो. Which is also honesty, which is fine, but that also goes to show how diseased we are. मतलब और बड़ा, मतलब कितना इमरजेंसी है. That's why Prabhupada used to say Krishna consciousness is an. अब कितना टाइम बचा है अपने को मालूम नहीं. अगली बार ये धोती कुर्ता तिलक मिलेगा नहीं मिलेगा, इस्कॉन कानपुर में मिलेगा नहीं मिलेगा, कहाँ पैदा हो जाएंगे, कौन सा सुअर बन के किधर क्या हो जाएंगे, कुछ मालूम. कितना बचा है लाइफ मालूम. यूक्रेन में होते, एज आई वाज टेलिंग यस्टरडे, यूक्रेन में होते अभी तक दूसरा स्पीशीज में बैठे होते. कब कौन सा मिसाइल गिर जाए, कब क्या हो जाए, राइट. So this is actually a serious matter. Krishna consciousness is actually a serious matter. और कितना our age is going. अब so many young devotees we see. Some very close friend of mine last year COVID में passed away. 33, 34 years. Nobody, I mean, just हम लोग ऐसे बोलने के लिए कभी भी बोलते हैं ना, nobody imagine young can also die. पर जब आसपास से किसी का होता है तो सच में बार बार अपने आप को यही क्वेश्चन हो रहा है, कैसे कैसे कैसे, हाउ, राइट. सो अब जितना भी टाइम है उसमें जो भी अपॉर्चुनिटी है उसको यूज करना है, राइट. लेकिन इसका मतलब क्या है कि कोई घर का काम काज कुछ करने की जरूरत नहीं, ड्यूटी रेस्पॉन्सिबिलिटी कुछ नहीं, दिन भर मंदिर में बैठे नहीं. उसके लिए नेक्स्ट सेशन है बैलेंस करने के लिए. ये सेशन क्या था? पर्पस. अगला सेशन क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ गृहस्थाश्रम. दैट्स नेक्स्ट सेशन. तो उधर में उधर से हैमर पड़ेगा, इधर में इधर से हैमर पड़ा है. तो ऐसा हैमर पढ़ते 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 कुछ हो जाएगा, हमारा बन जाएगा. ओके. But this is amazing. Krishna consciousness is अद्भुत. वो एक वर्ष है ना भगवद गीता में, कहीं तो अद्भुत 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 4-5 बार अद्भुत आता है. That verse is called अद्भुत वर्ष. Actually that is what it is. आश्चर्य वाला भी है, अद्भुत वाला भी है, दोनों है. कहीं कहीं आश्चर्य वाला शायद भागवतम में, आई डोंट नो, कहीं तो है. तो बट दिस इज अमेजिंग. आश्चर्य ही है शायद, आई थिंक आश्चर्य. सोल, हाँ सोल इज अद्भुत, आश्चर्य. और अद्भुत भी कहीं है, किसी सम वर्स इट इज देयर. बट एक्चुअली इट इज सो वंडरफुल कृष्णा कॉन्शियसनेस. लेकिन अब वापस हम घर जाएंगे, वही जॉब, वही ये, फिर वापस वही है. वो भी एक रियलिटी है, ये भी एक रियलिटी है. इसी में थोड़ा सा बैलेंस कर करके उस रियलिटी को कितना कृष्णा कॉन्शियस बना सकते हैं, इस रियलिटी से इंस्पिरेशन लेके, राइट. दैट इज गृहस्थ आश्रम. और होएगा, सबका हुआ है, हमारा भी होएगा, क्यों नहीं होएगा. और प्रोसेस है. शास्त्र और गुरु और कृष्णा हमारे साथ है. प्रभुपाद पे भरोसा है कि नहीं? नहीं है हम लोग को, नहीं है. एक्चुअली दैट्स अ रियलिटी. पर एटलीस्ट थ्योरेटिकली कभी कभी आता है. कृष्णा पे भरोसा है कि नहीं? नहीं है, पर थ्योरेटिकली कभी कभी आता है. दैट इज द मीनिंग ऑफ एसोसिएशन. और उसके बेसिस पे धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे. तो पर्पस ऑफ गृहस्थ आश्रम, लास्ट पर्पस इज टू गो बैक होम, बैक टू गॉडहेड. Thereafter, Krishna is telling to Prachitas. वो प्रचितास वो रुद्र गीता होता है और शिव जी आते हैं, उसके बाद जो कृष्ण आते हैं. तो thereafter you will develop unadulterated devotional service unto me and be freed from all material contamination. At that time, be completely unattached to material enjoyment in the so-called heavenly planets as well as in hellish planets. You will return home back to Godhead. तो कृष्णा is telling गृहस्थ आश्रम के बाद भी आप आ जाओगे अगर आपने सब ठीक से किया है. टेंशन की बात नहीं है. और प्रभुपाद परपोर्ट में क्या लिख रहे हैं? By the grace of the Lord, the Prachitas were given special facilities. Although they could live millions of years to enjoy material facilities,
स्वयंभुवा मनु में भी enjoyment आया, Prachetas में भी enjoyment आ रहा है. They still would not be deviated from transcendental loving service of the Lord. Being thus fully engaged, the Prachetas would be completely freed from all material engagement. Material attachment is very strong. During one lifetime, a materialist engages in acquiring land, money, friends, society, friendship, love, and so on. He also wants to enjoy the heavenly planets after the annihilation of the body. If one is engaged in devotional service, however, he becomes unattached to all kinds of material enjoyment of the body, even though he is in the middle of that. That is the secret. Sri Chaitanya Mahaprabhu further advised the Kurma Brahman, if you follow this instruction, your materialistic life at home will not obstruct your spiritual advancement. Indeed, if you follow these regulative principles, we will again meet here, or rather, you will never lose my company. What to speaking of again meeting, you will never lose my company. Yo mam pashyati sarvatra sarvam cha mai pashyati. And then this way our life will become a glorification of Krishna. It will be a wonderful offering to Krishna. We should glorify Krishna by our thoughts, words, actions, and culture. And Grihasthas are the culture. ब्रह्मचारी लोग का responsibility नहीं है. क्या सोसाइटी में कल्चर बनाएंगे ब्रह्मचारी लोग? वो सोसाइटी का पार्टी नहीं है. तो सोसाइटी में कल्चर कौन क्रिएट करेगा? गृहस्थास. जो हम घर में कल्चर क्रिएट करेंगे. So temple, Prabhupada, brahmachari, they have created the culture in the temple. And that culture यहाँ से लेके हमको अपना मग लेके यहाँ से पानी ले लेके अपने घर में भरना है. We have to create that culture in the home. So therefore we don't have to only present the truth. We have to represent the truth also. हम दिन भर रहते हैं घर में. हम 24 घंटा मंदिर में तो नहीं रह रहे गृहस्थ लोग. हफ्ते में एक बार आ रहे हैं, राइट? तो बाकी टाइम 6.5 days a week हम वहाँ हैं. तो हमको मंदिर का रिप्रेजेंट करना है. प्रभुपाद को, गुरु को, कृष्णा को रिप्रेजेंट करना है by our dealing, by our behavior. So our life will become kirtan. That is the success of a grihastha. His life is a kirtan. बताओ, ऐसा मजा आ जाएगा ना एकदम. So let us all pray for each other that let our life become that kind of kirtan. And I think this is the last slide. So the Grihastha Ashrama actually is a science as well as an art. So to summarize what all we have discussed today is, we have discussed science also, art we will discuss in the next session. Science मतलब कैसे, भाई क्या है गृहस्थ आश्रम? कोई अपसंप्रदाय है क्या ये? कि कोई बोनाफाइड सिस्टम है? कृष्णा ने बनाया है, किसने बनाया, क्यों बनाया, कैसे काम करता है, ब्लेसिंग है कि कर्स है? अरे अगर उसका भी गोल एकदम हाई क्लास डिवोटी बनना है तो आश्रम ही ज्वाइन कर लो ना फिर. तो गृहस्थ आश्रम क्यों है? वी डिस्कस्ड ऑल दीज काइंड्स ऑफ थिंग्स. कैन गृहस्थास परफेक्ट देयर लाइफ? कि होपलेस हो गया पूरा अभी? Is it a second prize or consolation prize? You know, how goal of life is achieved through Grihastha Ashram. ये सब हमने देख लिया. In the next session, we'll see how ऐसा नहीं कि ये सब करना है मतलब बाकी कुछ नहीं करना है. यहाँ पे गृहस्था का डबल चैलेंज है. He has to work double hard, triple hard. Yes, you should know what you are signing up for. It's not a joke. And same brahmacharis. Before joining brahmachari ashram, they should know what they are signing up for. मजाक नहीं है. And once Bhakti Rasamrit Maharaj or Bhakti Charu Maharaj in Mayapur, they were giving a class, they were telling we should decorate our ashram. हम चाहे ब्रह्मचारी बने, सन्यासी बने, वानप्रस्थ बने, गृहस्थ बने, we should be decorating our ashram. Decorating our ashram means by our conduct, by our behavior, we should not bring bad name to that ashram. And therefore we should know what we are signing up for. Because initially सब अच्छा लगता है. In fact, grass on the other side looks greener. दूसरा वाला ज्यादा अच्छा लगता है. और कोई ना कोई एक लेके आगे बढ़ना होता है और फिर उसमें आगे लेके हम उसको डेकोरेट कर रहे हैं कि हम एक आइडियल एग्जांपल सेट कर रहे हैं. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. इसके लिए ऐसा नहीं कि हमको बहुत ही बड़ा सुपर हीरो होना है. हम तो नालायक हैं, कैसे आइडियल एग्जांपल सेट कर लेंगे? लेकिन स्ट्रगल करना है सेट करने के लिए. Ashrama always says that when we are preaching, devotees should see us as sincere or struggling to be sincere. Both are fine. अब इतना कंसेशन दिया गया है, बताओ. सिंसियर नहीं हो तो भी चलेगा, स्ट्रगलिंग टू सिंसियर हो तो भी चलेगा. You see? तो उतना तो हम कर ही सकते हैं ना. जैसे सतस्वरूप महाराज राइट इन जपा रिफॉर्म नोटबुक. इफ यू आर नॉट एबल टू चैंट, पढ़ा है जपा रिफॉर्म नोटबुक? उसमें एक जगह है, इफ यू आर नॉट एबल टू चैंट, क्राई दैट यू आर नॉट एबल टू चैंट. इतना तो कर सकते हैं. He continues, if you are not able to cry that you are not able to chant, cry that you are not able to cry that you are not able to chant. If you are not able to cry that you are not able to cry that you are not able to chant, then cry that you are not able to cry that you are not able to cry that you are not able to chant. Success in spiritual life is not about being the best. It is about doing our best. तो क्या प्रॉब्लम है? कहाँ प्रॉब्लम है? तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. My dear friends, कोई प्रॉब्लम नहीं है.
We will very nicely practice Krishna consciousness as long as we are in association of devotees. We take inspiring association, we take enthusiastic association, we inspire each other, and success will be guaranteed. There is no doubt about it. There is no doubt about it. Why will it not be guaranteed? We are seeing such wonderful examples in front of us. बड़े-बड़े Prabhupada के disciples, Jai Pataka Maharaj, Gopal Krishna Maharaj, Loknath Maharaj, Radhanath Maharaj, all Navayogendra Maharaj. So many wonderful examples they are setting. Sachinandan Maharaj, Niranjan Maharaj. हमारे सामने जीते जाते examples है. फिर उसके बाद such amazing devotees, disciples, उनके disciples, कैसे बड़े-बड़े examples हैं. तो हम क्यों नहीं हमारा होगा ना. इतना अच्छा रोल मॉडल है. ये लोग थोड़ी झूठ बोल रहे हैं. प्रभुपाद थोड़ी झूठ बोल रहे होंगे. और बच्चा ऐसा हो गया, प्रभुपाद भी झूठ बोल रहे हैं, जीसस क्राइस्ट भी झूठ बोल रहे हैं, सब झूठ बोल रहे हैं. और ऐसा थोड़ी है कि बाई चांस सब एक ही बात बोल रहे हैं. मतलब कुछ तो फैक्ट है. I mean, sometimes I say tell these things to myself, वही मैं शेयर कर रहा हूँ आपसे. तो कभी-कभी हमको विश्वास नहीं होता है कुछ चीजों पे. हम बस ऐसा एक कल्चर के जैसा आगे बढ़ रहे हैं, सब कर रहे हैं तो हम भी कर रहे हैं. लेकिन अपने आप को भी तभी हमारा फर्म कन्विक्शन होगा. We have to ask these check and balance questions to ourselves. Then we will get to the stage of firm conviction. Firm conviction, कुछ भी होता रहे, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा कृष्ण को. आपको कोई भी लूट के ले जाए डिवोटी, कोई भी आपको इस्तेमाल करके छोड़ दे, इस बात में आप कृष्ण कॉन्शियसनेस छोड़ोगे क्या? We will never leave Krishna consciousness. Because कृष्णा में छोड़ दे तो मतलब करोगे क्या फिर? मतलब क्या? अभी छोड़ दिया, अब क्या करेंगे? तो क्या कर रहे हैं फिर? मतलब डेड. ठीक है, स्टैंडर्ड थोड़ा कभी कम कर देंगे, कभी ज्यादा कर देंगे, कभी चैंटिंग स्ट्रगल हो जाएगी, कभी एक राउंड छूट जाएगा, कभी नहीं कर पाएंगे, कभी ज्यादा कर पाएंगे. लेकिन द डिजायर टू प्रैक्टिस कृष्णा कॉन्शियसनेस, हाउ कैन वी गिव दैट? बट माया इज वेरी स्ट्रांग. बड़े बड़े डिवोटी का भी डिजायर चला गया. तो इसलिए हमको इतना ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए अपने ऊपर कि नहीं कुछ भी हो, मेरा डिजायर तो कभी नहीं जाएगा. ऐसे जा सकता है. Because things can just get covered. और अगर हमको लग रहा होगा हम स्ट्रॉन्ग डिवोटी हैं, एकदम सिंसियर डिजायर है मेरे अंदर, अब प्रभु जी तो बोल ही दिया बस डिजायर होना चाहिए, बाकी सब अपने आप हो जाएगा. अरे और डिजायर तो मेरे पास है ही, तो अब चलो सब ठीक है. नहीं. ग्रेटफुल, humble, every moment we are helplessly dependent on Krishna, even for that desire. It comes by mercy. It comes by mercy. और जो मर्सी से आता है उसको हम लाइटली नहीं ले सकते, क्योंकि वो कभी भी जा भी सकता है. अगर मेरे पॉकेट में 1 करोड़ रुपया होगा और मैं मर्सिडीज खरीदने जाऊंगा तो थोड़ी बोलूंगा दे दे यार, प्लीज दे दे, प्लीज. वो ये ले 1 करोड़ मर्सिडीज. विल आई बी ग्रेटफुल? पर जब हमको कुछ बिना मांगे बिना डिजर्व करने मिलता है, mercy is to get what we don't deserve, then we have to always be conscious. अरे कहीं चला ना जाए, अरे कहीं चला. That is what is helplessly dependent on Krishna. And then we have to beg, we have to cry, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare. और ये एक हेलुसिनेशन नहीं है. ये मैं अपने आप से पूछता हूँ कभी-कभी कि क्या ये सब ऐसा हम लोग को एकदम हाई पर ले जाते हैं, एकदम ऐसा करके दिखाते हैं जैसे ये, फिर जाके पढ़ाई करना पड़ता है, जॉब में जाके पैसा कमाना करता है, वो सब करना पड़ता है. तो ये एक आर्टिफिशियल स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस है क्या? ये हेलुसिनेशन है क्या? ये नहीं है. अगर होता तो प्रभुपाद जलदूता बैठ के क्यों जाते उधर, ये हेलुसिनेशन सबको दिखाने के लिए? और बाई चांस बाइबल भी वही बोलता है, भगवदगीता भी वही बोलता है, सब कुछ वही बोलता है. बाई चांस ये सब फैक्ट्स ऑफ द सारे रिलीजन का सेम एसेंस होता है. बाई चांस जीसस क्राइस्ट भी वही बोल रहे हैं, तो बाई चांस थोड़ी हो गया, कोइंसिडेंस थोड़ी, मतलब फैक्ट है. चलो वो भी सब बेवकूफ है, गलत बोले, पागल बना रहे सब. ये अर्थ है, छू सकते हैं इसको, छू सकते हैं ना, तो अर्थ के बाहर भी कुछ होगा. अब जाते जाइए बाहर. क्या आया रास्ते में? मरकरी, वीनस, ये सब आ गया. और जाते जाइए गैलेक्सी सिस्टम जो भी होता है गैलेक्सी में, सोलर सिस्टम के बाहर जाइए और जाइए. अच्छा तो नहीं होगा अचानक से रियलिटी से फिर खत्म हो जाएगा. रियलिटी के बाद भी रियलिटी रहेगा. जाते जाइए, कुछ तो होगा. कृष्ण मतलब as fact as anything else which we are not able to perceive right now, but we have to have the faith in the shastras, and that faith is not sentimental faith. ये सच में है, सच में कृष्णा है. सोचो भी अचानक से हनुमान जी आ जाए सामने. एक दिन मैं जा रहा था गाड़ी से, टेंपल जा रहा था, तो वो बेंगलोर में देखो बहुत सारा ऐसा मूर्ति रहता है, हनुमान जी का ऐसा बड़ा मूर्ति है. मैं प्रहलाद को, अपने बेटे को बोला, सोचो प्रहलाद, अभी हम तो क्या बचपन से मूर्ति देखते आ रहे हैं, तो हम देख के पश्चात न पश्यति, देख के भी हम फील कर पा रहे हैं क्या? सोचो भी सच में हम
बिलीव भी करते हैं कि हनुमान जी हैं? अगर बिलीव करते हैं तो हैं अभी, और हैं और सोचो आपके सामने आ जाए, हमको क्या लगे, क्या करेंगे, हम क्या फील करेंगे, क्या बोलेंगे? पर शायद हम सोचते ही नहीं, वो तो मूर्ति नहीं है, वो थोड़ी है, कोई आएंगे थोड़ी, ऐसे थोड़ी होता है, आएंगे थोड़ी, होंगे थोड़ी, हाँ ठीक है स्टोरी है, हम सुने, हमको श्रद्धा है। तो हम लोग के पास श्रद्धा भी एक्चुअली नहीं है, कम है, तो धीरे धीरे बढ़ेगी, क्योंकि फैक्ट है, ये हमको पता है, ये हमको पता है, नहीं पता है तो हम लोग और डिस्कस करेंगे। फैक्ट है, फैक्ट है, हमको कुछ नहीं पता उस फैक्ट के बारे में, हम थ्योरेटिकली सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, दूसरों को भी बता रहे हैं, कन्विंसिंग वे में बता रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, राइट, हम कर रहे हैं ऐसा, लेकिन फैक्ट है, हमको पता है, तो हम बस इसमें लगे रहेंगे तो आगे हमको पता चलेगा, आएगा, हमको मिलेगा, हम होंगे कामयाब। दैट स्पिरिट वी शुड हैव फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। ओके, हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। श्रील प्रभुपाद की जय। 3 minutes we have for any questions or comments. बाकी you know right, evening we have a explicit question answer session. By the way, वो क्वेश्चन आंसर अभी ये क्लास हुआ, जिसके मन में जो भी क्वेश्चंस आया आप लिखते जाओ फटाफट फटाफट, अगला क्लास में और बहुत क्वेश्चंस आएगा, कुछ भी आएगा, उल्टा पुल्टा भी आएगा, जो आएगा सब लिखो। शाम का क्वेश्चन आंसर सेशन में वी विल डिस्कस ऑल क्वेश्चन। आपका सीक्रेट क्वेश्चन होगा, प्राइवेट क्वेश्चन होगा, कॉन्फिडेंशियल क्वेश्चन होगा, जो भी क्वेश्चन होगा बिना नाम के लिख देना चिट में, और चिट में दे देना। बट पॉइंट इज, जो पूछना दूसरे के नाम पे जो पूछना है, अपने नाम पे जो पूछना है, व्हाटएवर, बिकॉज़ गृहस्थ आश्रम में, नित्यानंद सभा में क्वेश्चन आंसर इज वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रह्मचारी आश्रम में ऑल्सो होल भगवद गीता इज क्वेश्चन आंसर, भागवतम इज क्वेश्चन आंसर, राइट। पर उधर चलो बहुत सारे क्वेश्चन आंसर अवेलेबल हैं, क्योंकि भगवद गीता का मेन, भागवतम का मेन पर्पस था डायरेक्ट डिवोशन पे लाना, तो वो है, लेकिन जो डिटेल्स वाले जो क्वेश्चन आंसर होते हैं वो उसके लिए शास्त्र ज्यादा नहीं है, वो रामायण महाभारत में टू सम एक्सटेंट है, यू नो, तो इसलिए उसका एसेंस पता चल जाता है तो अच्छा रहता है, राइट, व्हेन इट कम्स टू डिटेल्स ऑफ सोशल डीलिंग्स एंड थिंग्स लाइक दैट। तो प्लीज मेक श्योर टेक दिस, बिकॉज दिस इज द फर्स्ट टाइम दिस हैपनिंग, एंड आई थिंक नित्यानंद सभा कैंप बोल के फर्स्ट टाइम आई एम डूइंग इन कानपुर। तो प्लीज मेक श्योर कि जो भी क्वेश्चन हो, और अगले सेशन में आएंगे बहुत क्वेश्चन, अभी बहुत स्पिरिचुअल क्वेश्चंस होंगे इस सेशन में, अगर है तो नोट कर लीजिए, अगले सेशन में बहुत मटेरियल क्वेश्चंस होंगे, वो भी नोट कर लीजिए, फिर क्वेश्चन आंसर सेशन में सब हम लोग करेंगे, ओके। अच्छा, राइट नाउ मीनवाइल एनी कमेंट्स, एनीथिंग? And by the way, please pray that whatever I have spoken, I should remember this and I should try to apply this in my life. So what I have spoken is wonderful, I'm telling you. What I have spoken is amazing. But please pray that I should try to remember what I said and I should try to follow what I said. The message is wonderful, that we know. This message is glorious. This message is glorious. Whether it is coming through my mouth or somebody else's mouth, that is secondary. So let us all pray and help each other that we remember these messages, you know, and whatever we have discussed. So I'm really seriously asking, because life is very, very, you know, the realities of life are very amazing. Anyway, any questions, comments, anybody? वो सीरियस हो गया क्या मामला? पर बीच में तो हम लोग हंसी मजाक भी किए थे। That is Krishna conscious humor. But anyway, so okay, I think we'll take a break now. मेरे को अगला सेशन के लिए थोड़ा पीपीटी जल्दी से बनाना है, बनाया नहीं अभी मैंने, 2 बजे एक मीटिंग है, तो 1 से 2 का टाइम है मेरे पास। So we'll do this, and so the summary of this session basically was what? Purpose of Grihastha Ashram, how it works, whether it's bona fide, and why, what mood we should enter Grihastha Ashram, and next session we will see the other aspects. चलो ये तो spiritual हो गया, so now is it going to come easily, or what are the other things we have to take care of? Should we get distracted by them, or should we take them as burden, or is it something else? वो सब हम लोग next session में discuss करेंगे. Responsibilities in Grihastha Ashram. Yeah? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare. श्रील प्रभुपाद की जय, इस्कॉन कानपुर भक्त समाज की जय। So deliberately I thought let's skip question answers right now, क्योंकि वो हम लोग anyway question answer session. By the way, was this recorded by any chance? Recorded? You can share that with me. And mercy is very important. Serving great souls. If we are